So okay, so it's okay if it permit, they'll permit, and then I'll turn on the camera, but I'm not Yeah, able to turn on my camera. Okay, so now you yeah, can. yeah, Okay. yeah. We can see you. Yes, Yeah, ma'am. We can see you, Yes. ma'am. Okay. So now we are going to start with the new chapter, which is about the second chapter of the DNHE1. Okay. Yesterday I have explained each and everything about the DNHE program. The persons I don't know. So I hope that everybody has joined yesterday too, who are actually eligible for this. Okay. So today we will be going to start with the next chapter, which is the macronutrients. Okay, so the first of all we will be actually discussing about the carbohydrates. And the carbohydrate, as we know that the macronutrients, okay, the first macronutrient and the carbohydrates are already, I've told you that they are the instant source of the energy. Okay, so instantly when you read the source of the energy, so these are the main source of the energy. And also I have explained yesterday very well that every kind of the uh, major important carbohydrate is the glucose, because whatever you eat, all you talk about the balanced food like the proteins, lipids, and the carbohydrates, minerals, and all, but every food is converted into the major important carbohydrate, which is called the glucose. This is a monosaccharide. Okay, so every food is converted into the glucose whenever it is required. And how the glucose behave in the body, you people know much more about that. Okay, so uh, yes, so the carbohydrate are the major macronutrients, and the name is which is actually attached with that, it is known as the instant source of energy. Whenever you would be, I have given the example na yesterday that when the students, and whenever you would be like working hard and the physical activity ke baad na, you would be having craving for something meetha kind of a things, you need something sweets, and most of the carbohydrates, they are treated as a sweets one. Okay, some are the less sweetened or the more sweetened, but most of the time they're the sweetened ones. Okay, so these are, so we will be going to know about more about this carbohydrates. So objectives of this, like the absorption and other things of this carbohydrates, as the digestion and absorption. Okay, the first utilization and all. So first of all, I really wanted to tell you how we will be going to study about the carbohydrates. So carbohydrate की conversion आप पूछ लीजिए, ठीक है? So carbohydrates को अगर जानना है, so तो we should know about that. We have carbohydrates classification as a monosaccharide, disaccharides, and the polysaccharides. Also, there is one more classification is there. That's a oligosaccharide. Monosaccharides, oligosaccharides, then saccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. Mono means a single unit of the carbohydrate. The smallest unit of the carbohydrate is a monosaccharide. When two of the monosaccharides they join with the glycosidic bond, then they are known as the disaccharide. Di means the two saccharides. Okay, they are joined together. And then when there are so many 1, 2, 3, 4, 5, every monosaccharide is joined with the bond of the glycosidic bond with each other, so many 6 to 7 जब हम बात करते हैं, then they are called the oligosaccharides. Okay, and then more than अगर 10, 12, 20 से ज़्यादा हो जाते हैं, that you can have any long chain of the monosaccharides. Every monosaccharide is joined by the glycosidic bond with each other, so we could use the name as a polysaccharides as a common name. Okay, so mono, di, oligo, few, and then many the polysaccharides. Okay. So monos में हमारे पास examples होते हैं glucose and the fructose. Glucose is one of the example which is an aldose, and हमारे पास fructose है which is an example of the keto sugar. Ketoses and the aldoses are the monosaccharides which are converted. Okay, and then there would be the disaccharides like lactose, mannose, sucrose. Okay, so these are the disaccharides which have a 2 to 2 units of the monosaccharides. They are joined together with the help of the glycosidic bonds. And then there would be the oligosaccharides, or oligosaccharides को आपको ये भी कह सकते हैं, if the 3 units they are joined together, then they are known as the trisaccharides, tetrasaccharides, pentasaccharides. Okay, so this is, but commonly we know it as a oligosaccharides. And for the few, till few 5, 6, 7 तक, उसके बाद फिर हमारा सारा जो चलता है वो सारा हमारे पास आ जाता है पॉलीसेक्राइड्स. ओके, पॉलीसेक्राइड्स में फिर अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ये सब आ जाते हैं. ठीक है, सो दे आर द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. सेल्यूलोज इज आल्सो वन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल्यूलोज. ओके,
सो बट सेल्यूलोज, आप सबको पता होना चाहिए कि सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दी आर डाइजेशन प्रोसेस इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द एंजाइम्स प्रेजेंट इन आर बॉडी, which can which affects which acts as a specific enzymes or specific substrates. Okay, so ग्लूकोज के लिए अलग स्पेसिफिक एंजाइम होगा, फ्रक्टोज के लिए अलग होगा, गैलेक्टोज के लिए अलग है, मेनोज के लिए, लैक्टोज के लिए, सब अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। तो सेल्यूलोज के लिए हमारे पास कोई, हमारी बॉडी में कोई भी एक आई मीन नहीं है हमारे पास एंजाइम, सो वी कैन नॉट एक्चुअली डाइजेस्ट। दिस इज अ कॉमन polysaccharide cellulose, and this is, you should know about that. Okay, so we should avoid having the cellulose, because फालतू में पीस आएगी, फालतू में अंदर जाएगी, and then डाइजेस्ट तो होनी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारी डाइजेशन का मेन जो प्रोसेस आता है ना, that would be the mouth, and then there would be the salivary glands, and esophagus से होते हुए that would go into the stomach, and then there would be, so I have told yesterday कि आपको देखना है कि एक स्टमक है हमारे पास। जब हमारा खाना खाते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स की डाइजेशन तो हमारे माउथ से शुरू हो जाती है। सपोज दी अमाइलोस, अमाइलोस इज वन ऑफ द पॉलीसेक्राइड। तो हमारी बॉडी को पता है स्टार्च, स्टार्च का अनदर नेम है पॉलीसेक्राइड। ओके, सो तो जब पॉलीसेक्राइड्स आएंगे, एंड पॉलीसेक्राइड्स दे वुड बी लाइक working on your digestion of the polysaccharides, our body. So our body has a natural instinct, okay, that comes to know that this is not monosaccharide, that is not a disaccharide or the oligosaccharide, this is the polysaccharide, and the digestion should start so early. So whenever we put into the mouth and then we start chewing na, so there is a salivary amylase. That salivary amylase enzyme starts the digestion of that food very beginning from the mouth only, whenever you start chewing the, because the salivary amylase is present in the saliva, and there is amylase enzyme is also present in the pancreas also. There is a pancreatic amylase also, but it would be going to start the digestion of the amylose specifically because it's a polysaccharide. Okay, जब जब बड़ा है ना, इस बात को समझने की कोशिश करो, जब हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल है ना, तो उसकी डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगी, च्यूइंग से, मतलब स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स। जब ऑलिगो है तो फ्यू है, तो दैट वुड बी एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट इन द स्टमक। ओके, एंड द डाइसेक्राइड्स की भी स्टमक में होगी, बिकॉज देयर आर टू यूनिट्स, एक ही बॉन्ड टूटना है ग्लाइकोसिडिक, तो दो मोनोसेक्राइड्स बन जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जो भी कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, आइदर इट वुड बी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और द लिपिड्स। ओके, so they would be getting converted into or broken down into their smallest units, बड़े वाले molecule smallest units में, then they actually go to the you can say that they transfer to the small intestine। जो बची खुची बाकी की डाइजेशन है, मतलब मैक्सिमम डाइजेशन हमारी स्टमक में हो जाती है। तो स्टमक में जब खाना जाता है ना, मुंह से, जितने भी च्यूइंग के दौरान जितना भी फूड की स्मॉल स्मॉल डाउन में ब्रेक डाउन हो गया, एंड देन फ्रॉम द इसोफेगस दे वुड गो डाउन। ये आपकी पूरी पिक्चर बनी हुई है, इफ यू ओपन द बुक, ओके, दैट वुड बी ऑन अ पेज नंबर 2.4 फिगर, 2.1 फिगर है, डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। डीएनएचई 1 की सेकंड यूनिट का ये चैप्टर चल रहा है। ओके, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज आई एम जस्ट टीचिंग यू फ्रॉम योर बुक्स, एवरीथिंग एक्स्ट्रा बताऊंगी, बट आपको सब आपकी बुक्स में मिल जाएगा। ओके, सो दैट वुड बी लाइक going through the stomach, and then the stomach में जब food पहुंचेगा ना, and then there would be 3 glands. Okay, एक तो liver है, एक है आपका गॉल ब्लैडर हो गया, और एक पैनक्रियाज है। ये तीनों हेल्पिंग हैंड्स बैठे हैं। पैनक्रियाज गॉल ब्लैडर से बाइल आएगी, और लिवर से आपके एंजाइम्स आएंगे, पैनक्रियाज से भी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के साथ साथ आपके हार्मोन्स भी आएंगे। ठीक है, सो ये तीनों चीजें जब इकट्ठी होके दे आर हेल्पिंग इन द डाइजेशन इन द स्टमक। तो जो काम इनका है, एंजाइम स्पेसिफिकली काम करेंगे, बाइल आपका सिस्टम सेट करेगी डाइजेशन का। ठीक है, और जो हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट करेंगे आपके शुगर लेवल्स, और कम है या ज़्यादा है, जो भी डाइजेशन है। इस सब के बाद द फूड वुड बी गोइंग टू ट्रांसफर टू और मूविंग टूवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना एब्जॉर्ब होना है, जो भी स्मॉलेस्ट पार्ट बने हैं, दे वुड बी गोइंग टू डाइजेस्टेड फ्रॉम द माइक्रोविलाइज, जो, क्योंकि विलाइज होते हैं ना, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं जो इंटेस्टाइन का, बिकॉज अगर वो सीधी होगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, बिकॉज उसमें ऐसे ऐसे विलाइज होते हैं ना, वल से पड़े होते हैं। ओके, so they actually increase the surface area of the intestine, so that more of the food would be absorbed through the walls of the intestine, and that would go to the transport कहाँ है हमारा? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा क्या है? ब्लड एंड लिम्फ।
ज्यादातर ब्लड में जाएंगे एंड ब्लड से फिर ट्रांसपोर्ट होके डिफरेंट ऑर्गन्स को जाता है बिकॉज इन द सेंस ऑफ द ग्लूकोज। ओके, सो जो बचा कुचा है स्मॉल इंटेस्टाइन में दैट वुड गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द बाउल मूवमेंट। ओके, सो ये सीधा सीधा फेट है हमारा, जो वट एवर वी ईट एंड देन इट वुड बी गोइंग इन टू दैट। ओके, so the mouth से esophagus में जाके and then to the stomach, then to the small intestine, then to the large intestine, then to the rectum, and then from the anus the fecal material would be excreted। ठीक है, ये सीधी सीधी फेट है। वो चाहे हमारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो, लिपिड्स हो, प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो या वाइटामिन्स हो, उनके अपने फंक्शंस होते हैं, उनके जो भी बचे हुए रिमेन्स होते हैं दे वुड बी एब्जॉर्ब्ड एंड देन इट वुड बी गोइंग इनटू द ब्लड एंड देन इट वुड बी एंटर्ड इनटू द सेल्स। सेल्स का मैंने आपको बताया था। एंड वट एवर वी, ये आपने ध्यान में रखना कि वट एवर वी ईट दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज कम्स इनटू द यू कैन से दैट ब्लड एंड देन इट वुड बी अब्सॉर्ब्ड। एंड वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाली बात कल वाली नहीं भूलनी है जो मैंने आपको बहुत ही बिगनिंग में बताई, बिकॉज द ग्लूकोज वुड एंटर इनटू द सेल्स on the basis of the concentration gradient and along with the help of the sodium ions and the gated channels अपने आप नहीं जाएगा। एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है कि जितना आप खाओगे उतना ही डाइजेस्ट हो जाएगा, तो अंदर सेल के कंसंट्रेशन कम हो जाएगी एंड देन द मोर ऑफ द ग्लूकोज वुड बी एंटरिंग इनटू दैट। एंड ग्लूकोज खर्च कब होता है? व्हेनेवर यू वुड बी डूइंग द फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, ग्लूकोज वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा एंड देन यू वुड बी लाइक, फिर वो एग्जैजरेट हो जाएंगी। और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अप होना आपको पता है क्या दिक्कत आती है। ठीक है, सो द होल प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन इज कंप्लीट इन द टाइम रिमेन्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, सो ये चीजें आपको देखनी है कि ये टाइम बाउंड सिस्टम होता है। ऐसे नहीं कि आपने सुबह खाया और वो शाम तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खाना, because your body has a good enzymatic system and enzymes are very specific for their substrates and the substrates they would start working on, because आप खाना खाते हो बैलेंस फूड एंड वेराइटी ऑफ खाना खाते हो, पता नहीं कौन कौन से तरह के कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, फिर कितनी तरह के प्रोटीन्स खाते हो, कितनी तरह के, और हर तरह का प्रोटीन, हर तरह का वाइटामिन, हर तरह का कार्बोहाइड्रेट, हर तरह का लिपिड के लिए हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं। तो आप पता क्या करते हो, जब आप खाना खाते हो ना वैरायटी ऑफ फूड, और अगर आप खाते हो यू कैन से दैट जंक फूड या कुछ भी खाते हो, तो आपको पता है आप इतना वैरायटी ऑफ फूड खा लेते हो आपकी प्लेट में, जैसे स्टमक में आता है और जैसे ही माउथ से इवन, सो द फौज आ जाती है पूरी की पूरी एंजाइम्स की, क्योंकि हर पर्टिकुलर हर इंग्रेडिएंट के लिए, हर उस चीज के लिए ना, सबस्ट्रेट के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक एंजाइम। ओके, so that there would be the specific enzymes, so that enzymes would start working upon single substrate which is specific for that would be into the uh, enzymes. Okay, so there is an army which comes into the play for the digestion of the foods, because every food ingredient is a specific and substrate, specific substrate, specific enzymes. Okay, so then the mouth, as you already noticed, that the digestion begins in the mouth. Okay, because the food is chewed by the because this is the tongue, teeth, and saliva. These are also the part of the digestive system. Okay, these are actually included. Tongue se leke na, saliva and tongue and both the teeth, they are part of the digestive system, because you start chewing the food now. Whenever you put the food into your mouth, you start chewing and your digestive system starts working, starting from the you can say that starting from the teeth, saliva and the tongues. Okay, so there is an enzyme which I have already told you, amylase, but that enzyme comes from the saliva, obviously. Okay, so that enzyme is particularly for the starch or the amylose, which is the scientific name of the starch. Okay, and then not for every, because for the monosaccharides there is no enzyme, and for the disaccharides, if you are taken in your food, that there is no enzyme, only for the polysaccharide, and that is for the starch, because starch is a bigger molecule. As I've already told you, this is actually body's instinct, or with the God's grace, it's a system जो गॉड ने हमारा सिस्टम सेट ही किया हुआ है, बिकॉज द पॉलीसेक्राइड्स दे आर देयर, डाइजेशन वुड स्टार्ट इन द स्टमक, sorry, in the mouth itself when you start chewing the food. Okay, so in the stomach, chewed food already, okay, from with the help of the saliva, that would actually passes through the esophagus, which is a tube like structure. Okay, so that goes into the stomach,
and along with the gastric juices which is present in the stomach itself, and some of the enzymes are also present, and some are the enzymes which are secreted by the liver. Okay, so some of the enzymes which are secreted by the pancreas, as I've already told you, they are the accessory organs associated for the digestion with the stomach. गॉल ब्लैडर, लिवर एंड द पेनक्रियाज, ये ऊपर ही होते हैं साथ साथ ही. ओके, सो दे आर एक्चुअली अलोंग विद, ये वेट ही कर रहे होते हैं कि व्हेनेवर द फूड कम्स इनटू द स्टमक दे विल स्टार्ट वर्किंग. ओके, so the gastric juice, they have a many systems and very enzymes, and there is an hydrochloric acid which is secreted in the stomach and which is very mandatory for the stomach. Okay, so the acidic pH होती है हमारे stomach की. तो द मिक्स्ड फूड एंड द गैस्ट्रिक जूसेस दे कन्वर्ट इनटू द सूप लाइक कंसिस्टेंसी, मतलब पूरी इमल्शन काइंड ऑफ अ थिंग हो जाती है. च्यूड फूड होता है और इतने सारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं अलोंग विद द एंजाइम, अलोंग विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक. जस्ट इमेजिन क्या बन जाता है स्टमक में जाके व्हेनेवर यू ईट द फूड. Okay, and that too the balanced food, and particular enzymes they'll start working upon that. They are coming from the accessory organs. Okay, so the gastric juice की अगर हम बात करें ना, that would be containing, हम simply we use the word gastric juice for the bile and secreted जो भी होता है ना, इसमें जो भी इसके ingredient होते हैं, then they would be containing the enzymes which actually acts upon the proteins and bring about the partial digestion. Okay, तो stomach में भी ना 100% नहीं होती है. Okay, so that would be actually you can say that partially, और थोड़ी बहुत बाकी मतलब स्टमक के भी 2-3 पार्ट्स हैं स्टार्टिंग से लेके, and then finally whenever it has to enter into the intestine, तो little bit जो भी बची कुची digestion है, that would be done by the इंटेस्टाइन, एंड देन फाइनली अब्जॉर्प्शन होती है. तो इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोटोकॉल ज्यादा नहीं है, तो it would be done in the stomach only. Okay, it would be going to start with the mouth and then the mainly portion in the stomach and then absorption from the intestine. And the in small intestine में क्या होगा, because it's a part of the digestive tract. Okay, and partially जो food passes होता है stomach से into small intestine, तो intestinal juices होते हैं जो secreted होते हैं intestine में भी होते हैं, and also जो secretions they are coming from the liver and the pancreas, they go to the intestine also. Till that time they would be like accompanying that food, digested food towards the intestine also. So the secretion from the liver called bile and the pancreas is known as the pancreatic juice. मैंने बताया ना स्टमक में 3 तरफ से आएगा, तो लिवर से भी बाइल आती है, गॉल ब्लैडर से भी गॉल ब्लैडर जूसेस आते हैं, एंड पैनक्रियाट से भी पैनक्रियाटिक जूसेस आते हैं. But what the pancreatic juices they'll contain the hormones and they'll contain the enzymes also for the particular substrates. Okay, and then bile acids and the digestion absorption of the fats would also be done in the you can say that in the stomach only. Okay, but both the pancreatic and the intestinal juices of the enzymes, they break down fats, proteins, and carbohydrates basically. So we are not talking, we actually talk about the balanced diet as we have explained yesterday. So we actually talk about the balanced diet, but होता क्या है कि minerals and vitamins, they are the accessory ingredients, nutrients, which actually helps in another way. They also helps in the digestion of the food, but macromolecules are the main ingredients of the food, which actually works upon, and the enzymes of those which actually works on the fats, proteins, and the carbohydrates. Okay, so these are the main things which should be digested, and everything would be converted into the carbohydrate, which is a mainly glucose. Okay, so now अब हमारी बात खत्म हो गई है कि इंटेस्टाइन में जब जाएंगे डाइजेशन के बाद, एंड द इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है ना, द फूड वुड बी डाइजेस्टेड एंड देन फाइनली गोज इनटू द एब्जॉर्प्शन वाला जो मटेरियल है, दैट वुड गो इनटू द ब्लड सैंपल. ओके, सो ब्लड से एब्जॉर्ब हो जाएगा. देन नाउ जो बचा कुचा एंड द रिमेनिंग जो है रेमिनेंट्स ऑफ द फूड मटेरियल है, they would be actually going to the large intestine, and the small intestine with a large amount of the water passes it on to the large intestine. Here the most of the excess of the water is reabsorbed. अब यहाँ क्या होता है कि whatever the water content or the remnants, whatever is left for absorption, okay, so that water remaining, they would also be absorbed by the large intestine, and maybe some ingredients maybe they left for absorption, so they really get absorbed through the intestine, and then also it goes to the for the circulation. Okay,
and then the solid matter, whatever is left, then it would be ओके। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आप लोगों की ना थोड़ी रिक्वेस्ट आ रही है। आई एम जस्ट रीडिंग साइड वाइज मैसेजेस। सम पर्सन एक्चुअली इट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, सो आई हैव टू बी वेरी बाइलिंगुअल एंड आई एम ट्राइंग सो हार्ड कि मैं जो भी पढ़ाती हूँ वो बोथ दी लैंग्वेजेस में आपको समझ आए, हिंदी एंड some people they are requesting that I should explain in Hindi, and some people they are requesting that I should opt for English only. So please, अगर आपको कोई दिक्कत आती है ना तो you can ask me, ऐसी बात नहीं है, but I will be trying to, I am actually trying to explain in both of the languages, okay? So please cooperate actually at the same time. मैं कर रही हूँ, ठीक है? ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है, विल बी लाइक गोइंग टू डिस्कस। एंड ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी। एवरीबडी हैज नाउ माई नंबर, सो यू कैन ऑलवेज बेस्ट, मैं समझा दूंगी, ठीक है? मैं दोनों का, ठीक है, दोनों को। तो नहीं आएगा देन ऑल्सो आई एम देयर, ओके? सो नाउ अब एब्जॉर्प्शन हो गई है थ्रू इंटेस्टाइन एंड देन इट वुड बी कमिंग इनटू दी ब्लड। अब हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स है ब्लड में, अब पिक्चर की तरह देखो इस सारे सीन को कि कैसे होता है। व्हेनेवर यू ईट तो क्या फेट चल रही होती है, अदरवाइज क्या करते हैं हम, खाना खाए और सो गए, कुछ हो रहा है अंदर, नहीं हो रहा है, वी आर नॉट कंसर्न, है ना? यही है, वी आर नॉट कंसर्न बिकॉज दिखता नहीं है, ठीक है? बट अगर आप ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो कि फूड कहाँ गया इसके बाद, नाउ वी हैव रीच्ड टिल द पॉइंट कि अब हमारी एब्जॉर्प्शन होके ट्रांसपोर्ट में आ गया। सो वेयर द फूड इज एब्जॉर्ब्ड, इंटेस्टाइन में, ठीक है? एंड देन जो बचा खुचा है, देन इट वुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, okay, and then it would be entered into the bloodstream, okay? So the food and digested food would be the digested by the, or absorbed by the, digested by the stomach and absorbed by the small intestine, okay? So now we are going to move further, so okay, so absorbed हो गया, and then there would be the metabolism, okay? Utilization of the food अब आएगा। सो नाउ यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड को हम कैसे कहते हैं? देखो, डाइजेशन हो गई एंड देन द फूड एंड द मेन इंग्रेडिएंट्स जो लास्ट आ गए। अब इसके हिसाब से अगर हम सोचेंगे ना तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज द स्मॉल एंटिटी, ये बात आपको समझ आ गई कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वन ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल विच इज द फर्स्ट वन विच इज अ कार्बोहाइड्रेट। अब वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट द सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको भी सोचिए, वो भी दैट इज ऑल्सो अ बिग यूनिट, 6 कार्बन एटम है। दैट इज ऑल्सो नॉट अ स्मॉल मॉलिक्यूल, 6 कार्बन एटम है, कितने हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, और कितनी ऑक्सीजन्स लगी हुई है, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं। सो उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है विच इज कॉल्ड द ग्लाइकोलाइसिस, ओके? सो अब हम उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे जो आपकी बुक्स में भी है, दैट वर्ड इज द मेटाबॉलिज्म, ओके? अब इनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, पहले तो फूड खाया, बिग बिग मैक्रोमोलिक्यूल्स उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट में एब्जॉर्ब होके ट्रांसपोर्ट होके आ गया, नाउ सेल्स में एंटर होगा एंड देन द सेल वुड स्टार्ट विद द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज अ जनरल टर्म which is actually a combination of the two terms which is known as the catabolism and plus the anabolism, ठीक है? मेटाबॉलिज्म का भी डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन है। अब जो मोनो यूनिट्स आ गई है ना, जैसे मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, मोनो यूनिट्स का भी आगे जब मेटाबॉलिज्म होगा तो फर्स्ट इज द कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस में होगी ब्रेक डाउन एंड देन देयर वुड बी द एनाबॉलिक प्रोसेसेस। उस ब्रेक डाउन के बाद समथिंग न्यू वुड बी फॉर्म्ड। अब आपकी न्यू वुड बी फॉर्म्ड क्या होगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या जो भी बनता है, एक टूटेगा दूसरा। अब ग्लाइकोलाइसिस होगा अगर ग्लूकोज का विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड द ग्लूकोकाइनेज और द हेक्सोकाइनेज, देयर आर द टू एंजाइम जिनका एक ही सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, ओके? फॉर ग्लूकोज के लिए 2 एंजाइम्स हैं एंड देन ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होगा या फिर उसकी फॉर्म चेंज होगी, देन इट वुड बी फॉर्म्ड ग्लूकोज 6 काइनेज, ठीक है, 6 फॉस्फेट। तो काइनेज है तो वो ऐड करेगा एक फॉस्फेट ग्रुप, ओके? सो काइनेसिस हमेशा जहाँ पे काइनेसिस एंजाइम्स आ गए ना, सो थोड़ा सा मैं ज्यादा पढ़ाती हूँ बट आपके काम आएगा, दिस इज द बायोकेमिस्ट्री, ओके? सो द ग्लूकोज के लिए जो एंजाइम्स काम करेंगे ना, तो जो काइनेसिस होते हैं ना, किसी भी एक एंजाइम के पीछे अगर काइनेज वर्ड लग गया ना तो दैट मीन्स वो एंजाइम हमेशा अपने सबस्ट्रेट के साथ किसी भी पोजीशन पे ना फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा, और अगर फॉस्फेटेजेस आ गया ना किसी के पीछे तो वो उस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा। दिस इज जनरल टर्म, कहीं भी आप पढ़ोगे काइनेसिस एंड फॉस्फेट को, सो ऑलवेज रिमेंबर। So kinases, चाहे हेक्सोकाइनेज है चाहे ग्लूकोकाइनेज है, 2 एंजाइम है, they are actually associated with the glucose metabolism.
फर्स्ट दी कैटाबोलिज्म एंड देन देयर वुड बी दी एनाबोलिज्म. अगर आप ग्लाइकोलिसिस देखोगे तो ग्लाइकोलिसिस में कैटाबोलिज्म किसका हो रहा है? ग्लूकोज का. एनाबोलिज्म किसका हो रहा है? एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास? पायरूवेट. ओके, सो द पायरूवेट वुड बी देयर. तो पायरूवेट बनेगा, एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया वो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैटाबॉलिज्म होगा, इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल. जब उसी की ब्रेक डाउन से आगे जाके कुछ नया बनता है ना, वो होता है एनाबॉलिक. मतलब एनाबॉलिज्म इज अ फॉर्मेशन, कैटाबॉलिज्म इज अ ब्रेक डाउन. तो ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होगा, देन देयर वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ द पायरूवेट. ठीक है, पायरूवेट होगा. तो एनाबोलिज्म होगा. ठीक है, तो पायरूवेट बनेगा, बिकॉज हर प्रोसेस है. फिर उसके बाद क्या होगा? पायरूवेट आगे जाके किसी और साइकिल में जाएगा, तो पायरूवेट का कैटाबोलिज्म होगा एंड देन देयर वुड बी दी फॉर्मेशन ऑफ द एसिटाइल कोए और एसिटाइल कोए और अदर थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, सो ये वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, सो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी की ब्रेकडाउन की बात होगी ना, सो देन देयर वुड बी दी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. उस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में पहले कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे एंड देन देयर वुड बी दी एनाबॉलिक प्रोसेसेस, बिकॉज हम कुछ खाएंगे, वो ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद हमें एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो एनाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे. तो मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस द एनाबॉलिक प्रोसेसेस. सो दीज आर टू. ओके, एंड देन द कार्बोहाइड्रेट जो है, दैट्स अ बेसिकली अ लार्ज फैमिली. ओके, सो इट्स अ लार्ज फैमिली एंड इट हैज, मैंने सब बता दिया आपको. ठीक है, पहले मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ, हर किसी की अपनी कैटेगरी के नाम हैं. ठीक है, अब हमारे जो बेसिकली अगर हम देखें ना अपने घर में, अगर हम छोटी छोटी चीज़ें देखें तो कौन सी कहाँ पे भी है. तो हमारे प्लांट फूड्स भी हम खाते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ठीक है, मिनरल्स और हम ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. तो सोर्सेज आर वेरियस. ओके, सो मेनली जो हमारे फूड्स में थ्री टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं, जैसे शुगर, स्टार्चेस एंड द फाइबर्स. ठीक है, ये बेसिकली ये जनरल नेम्स हैं. ठीक है, एंड बेसिक यूनिट जो इन सबकी होती है ना, दैट्स अ ग्लूकोज विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, और अदर एग्जांपल्स में हमारे पास फ्रक्टोज शुगर्स भी होती हैं एंड गैलेक्टोज शुगर्स, वो इतनी मीठी नहीं होती हैं जितनी ग्लूकोज होती है. सो द ग्लूकोज इज द स्वीटेस्ट वन. ओके, ऐसे सुक्रोज भी होती है, बट हमारी वो मेनली वी एक्चुअली यूज एज ए ग्लूकोज. तो जो टेबल शुगर होती है ना, जो केन शुगर है, दैट इज कॉमनली यूज्ड हमारे घरों में, दैट इज आल्सो वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. उसकी भी टू बेसिक यूनिट्स होती हैं. वो कौन सी हैं? एक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ओके, एंड दैट्स अ सुक्रोज. सो एक और होती है, हम स्टार्च बहुत यूजुअली आजकल घरों में सूप्स में थिकनेस के लिए, या फिर चाइनीज फूड जब हम प्रिपेयर करते हैं या बाहर जाके जैसे भी खाते हो ना, उसमें स्टार्च बहुत यूज होती है, जो थिकनेस के लिए होती है ना, दैट्स अ स्टार्च. ठीक है, एंड इसमें इसमें इतने ज्यादा नंबर ऑफ ग्लूकोज होते हैं ना, जब आप कॉम्प्लेक्स खाओगे ना पॉलीसेक्राइड, तो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल बी, जो हम अवॉइड करते हैं बेसिकली आजकल शुगर मॉलिक्यूल्स लेने के लिए, ग्लूकोज को कम हम करते हैं. बट इफ यू स्टार्ट हैविंग द स्टार्च, तो आप इतना ज्यादा शुगर खा लेते हो, इतने ज्यादा, सीधा सीधा आपको ग्लूकोज मिलता है. एक 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 यूनिट ब्रेक डाउन होती जाएगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वुड बी गोइंग टू स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन एंड देन इट वुड बी प्रोवाइडिंग यू द सीधा सीधा ग्लूकोज मॉलिक्यूल. Straight away you'll have a large amount of the glucose molecules if you'll consume the starch along with other molecules, along with food other molecule. क्योंकि आप सिर्फ स्टार्च नहीं है ना, स्टार्च तो स्टार्च इज जस्ट एडेड इनटू दैट food molecules. Okay, so all these types of the carbohydrates, starches, sugars and the fibers are also classified as the available and the non-available carbohydrates. ठीक है, इनको अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल कैटेगरी में भी आते हैं ये. सो द कार्बोहाइड्रेट्स लाइक शुगर्स एंड स्टार्चेस आर digestible in the human digestive tract and hence it can be made the available to the body for its functioning. Okay, so but the ये available वाले में है. So these carbohydrates are termed as available carbohydrates. But the cellulose, which I have already told you, it's a plant carbohydrate which is treated as a non-available because of the reason because we don't have the specific enzyme for its digestion. Okay, so this is only the one of the carbohydrate, cellulose, which is a polysaccharide. Category wise अगर आपने देखना है carbohydrate को, so this is a polysaccharide. ठीक है, so this polysaccharide would be known as uh, unavailable या non available carbohydrate. Okay,
सो अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स मैं आपको बताती हूँ। जो फूड सोर्सेज अगर हम लें तो उसमें से कौन से हैं हमारे पास? सीरियल्स, ऑल सीरियल्स, व्हीट, राइस, मिलेट्स, ज्वार, पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो, यैम, कोलोशिया। फ्रूट्स में मैंगो, बनाना, सोपिया, ये सारों में हमारे बहुत कार्बोहाइड्रेट्स गुड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। केन शुगर हो गई, शुगरी फॉर्म्स, क्यूब शुगर्स हो गई, स्वीटनर्स लाइक हनी, जेगरी इज अ 90%। ये जो आपकी मिथ्स है ना कि शुगर नहीं ऐड करनी है, हनी ऐड कर लो, सो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। आप अपना सोच के देखो कि हर मीठी चीज शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और हनी तो इतना मीठा होता है, वो कैसे हो सकता है कि आपको शुगर की हम रिप्लेसमेंट आप समझ सकते हो। सो इन चीज़ों में मत जाओ। अगर आपको मीठा छोड़ना है तो आपको टेस्ट बड अपने सेट करने पड़ेंगे, मीठे को थोड़ा कम कम करके अवॉइड करना पड़ेगा। अदरवाइज दुनिया में हर मीठी चीज़ मीठी है और कार्बोहाइड्रेट है, दैट प्रोवाइड्स द शुगर, एंड आपके शुगर लेवल अप जाएंगे ही जाएंगे। इवन सम पर्सन विल स्टार्ट हैविंग द क्या कहते हैं उसको, ये स्टीविया, and some person they'll start having the non sugar free, okay, so these are also the saccharins। इनकी भी ना sometimes अगर diabetic persons हैं, ये उन्हीं के लिए बने थे, but some persons they'll start having that, okay, but for some time you can have that, continuously नहीं। जब craving हो रही है, you don't want to have sugar, you can have sugar free, you can have stevia, but ज्यादा नहीं लेने होते ये जब की कवर नहीं होती है, मैम only then you can have। हाँ जी। मैम मैम means people says that stevia is more digestible than sugar or स्टीविया इज गुड, स्टीविया इज अ गुड वन, इट्स अ हेल्दी, ठीक है, बट उसका शुगर का आपका बेस मैं अभी तो कह रही हूँ ना, बट पता क्या है, ये एक नेचर में आप जाओ, जो चीज जिसने जो काम करना होता है ना, वो उसी का उसके सब्स्टिट्यूट वो काम नहीं करता। दिस इज अ बेसिक नेचर। स्टीविया इज अ गुड प्लांट एंड यू कैन यूज, बट आपके टेस्ट बड ही सेट नहीं होते हैं, आप उसको ओवर लोगे, ठीक है। प्लांट इज अ मीठा वन, बट वो मीठे लीव्स मीठे होते हैं, ठीक है। इट्स अ गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो बिकॉज इट हेल्प्स अदरवाइज, बट उसकी ओवर किसी भी चीज का अगर आप यूज करते हो तो दैट्स नॉट अ बेनिफिशियल। इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द हनी ऑल्सो, हनी इज नॉट ऑल्सो गुड, इवन द शुगर फ्री इज ऑल्सो नॉट गुड बिकॉज सेक्रेन्स हैं, ये डिपेंडेंसी आपकी बना देते हैं बॉडी की, सो यू शुड नॉट टेक इट है। अगर आपको शुगर छोड़नी है, मीठा छोड़नी है, तो आपको अपने टेस्ट बड्स पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी मीठी चीज इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ बेसिकली। so my diabetic person can take stevia. क्या कह रहे हो आप? Diabetic person can take stevia. यस, दे कैन टेक स्टीविया, दे कैन टेक, पर फिर वही बात है कि उनके टेस्ट बेड से वो मीठे का टेस्ट नहीं है, ठीक, उनकी टेंडेंसी फिर मीठे पे रहती है, स्टार्ट हैविंग द क्रेविंग जब तक स्टीविया नहीं होती देन दे स्टार्ट। सो ये मेरा सजेशन है, प्लीज अनुराधा जी ये अपना कीजिए, क्योंकि ठीक है, बिकॉज मेरी आपको मुझे सो आपको हमेशा क्रेविंग होगी, अनुराधा जी अपना साउंड म्यूट कीजिए, ठीक है, ओके। सो दिस इज मैम हाँ जी। मैम जो बच्चे होते हैं वो स्टीविया ले सकते हैं चाहे वो प्री डायबिटिक हो। हाँ हाँ, स्टीविया इज क्वाइट सेफ फॉर एवरीवन, स्टीविया की अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चाइल्ड को दे सकते हैं लाइक जो 15 ईयर से भी कम के होंगे। हाँ हाँ, इट्स नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन गिविंग, ठीक है, क्योंकि बेबीज को भी है, कोई बेबीज को देखो टाइप 2 डायबिटीज तो होगी नहीं, इट्स अ टाइप 1 ओनली, टाइप एंड 1 ईयर। इंसुलिन, हाँ या उसको टाइप 2 तो होगी नहीं, ठीक है, या फिर जुवेनाइल होती है, दैट इज टाइप 1 ओनली, तो उनको हम वैसे भी इंसुलिन देते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत मीठा दे भी दोगे ना, लेकिन उसके टेस्ट बड सेट ना ही हो मीठे के लिए, तो ज्यादा गुड है, बिकॉज टाइप 1 डायबिटीज इज क्योरेबल होती है रादर देन टाइप 2 डायबिटीज, बिकॉज टाइप 2 तो जेनेटिक है, उसकी क्योर तो होगी नहीं, एंड लेटर स्टेज पे ऑनसेट होता है, ठीक है। टाइप 1 जो है दैट इज अ क्योरेबल, उसकी तो मेडिसिन इंसुलिन है बट कॉन्टिन्यूस है, बट विद टाइम जाके ना, some of the person I have seen, if they'll have the dietary patterns and with the immunity,
विद टाइम लेटर स्टेज पे जब व्हेन दे हैव द गुड इम्यूनिटी तो उनके कंट्रोल आ जाता है, ठीक है, बट स्टीविया इज Okay. सेफ, स्टीविया की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द टेबल शुगर। तो टेबल शुगर क्या होती है? दैट्स अ सुक्रोज एंड दिस इज द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कॉम्बिनेशन, ओके, दैट्स अ डाइसेक्राइड। एंड देन स्टार्च है, वो दैट द मल्टीपल यूसेज, मल्टीपल ऑफ यूनिट्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, uh, multiple usage of multiple units of the monosaccharides, which is called the glucose, is available in the as a starch. So cellulose is also one of the fiber, but which is a plant based. This is also multiple units of the glucose. So this is a non-available wala जो मैंने बताया था carbohydrate. Okay, so this is non-available. So again, further moving through your book. So there is a sugar. Okay, so 100% of the edible portion of the food. सो इफ वी सी ना कि 100 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अगर हमने फूड कंटेंट में देखना है, फूड स्टफ में, दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट, एक एक दो दो क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चंस में ये आता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है अगर, तो 100 ग्राम ऑफ एडिबल पोर्शन ऑफ एनी ऑफ द फूड अगर लें, सपोज शुगर का कंटेंट हमने देखना है, जो केन शुगर है उसमें 99.4% होगा इफ यू हैव द 100 ग्राम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट सोर्स, केन शुगर, ठीक है। 100 ग्राम केन शुगर में कितनी होगी शुगर? 99.4% कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है। हनी में 79.5, सी 79.5, 80% ऑलमोस्ट कोई कम थोड़ा ही है। वी स्टार्ट हैविंग दी हनी इन फ्रंट in case of the in front of the as a substitute of the sugar, okay, so the 80% तो हम ले ही रहे हैं, वो कम कहाँ है, ठीक है। 10% का फर्क है जस्ट, बट फिर स्टिल इट्स बेटर, स्टिल इट्स टू बैड। जेगरी में 95% होता है, ठीक है। कई लोग कहते हैं ना चीनी नहीं खानी है तो यू कैन हैव अ जेगरी, ओके, सो यू कैन नॉट जस्ट हैव। सो सीरियल्स में व्हीट में 71% है, राई में 78% है, रूट्स में, पोटैटोज में, स्वीट पोटैटो में, ट्रोपिकाना में भी 22%, 28 एंड 38% होता है। इसमें स्टार्चेज होती हैं जैसे पोटैटो में एंड स्वीट पोटैटो में, ठीक है। फ्रूट्स में बनाना में भी 27% है, सपोटा एंड मैंगो में 16% है, ठीक है। So these are some of the things. Now further going to some other topic about our food items, okay. So we take the food items and that would be converted into the first category is the energy giving food. So energy giving food में क्या होगा? जो instant source of energy giving है, that is the carbohydrate. So we are more discussing about the carbohydrate because we are actually, मैम हाँ जी, मैम अगर सब में इतनी शुगर है तो हम खाएंगे क्या फिर? देखो वही बात है, यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव, ओके। सो आपको वो मैं बताऊंगी आपको, अभी आप डीएनएचई पढ़ लीजिए, फिर एंड में जब सब समझ आ जाएगी ना, व्हेनेवर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स और द प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स एंड मिनरल्स, देन आपको बताऊंगी कि आप क्या खाना है। वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक आप समझ आएंगी, ओके। यू गेट मैम स्टीविया इज हर्बल, स्टीविया इज हर्बल, हाँ जी, स्टीविया इज हर्बल, इट्स या लाइक इट्स लीव्स, उसके लीव्स अगर आप खाएंगे तो आपको वो मीठा बनता है, लोगों ने घरों में बट लगाया जैसे हुआ जैसे है, रेस्टोरेंट होटल्स में जाओ तो स्टीविया के पैकेट्स रखे होते हैं, इज इट सेफ रखी टू होती है। टेक दैट? नहीं वो फिर वो पाउडर्ड फॉर्म में कर देते हैं ना, जैसे आप ओके, पुदीने को किसी को भी तो आप I पाउडर think फॉर्म में बना stevia, देते I हो, think जिंजर stevia पाउडर is a होता है, मीठी तुलसी. हाँ। तो वो भी आपके जो पुदीना है, मिंट के भी पाउडर्ड है, कोरिएंडर का भी पाउडर है, आजकल मैंगो पाउडर हाँ है, जी हर हाँ चीज जी। फ्राई करके यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ पाउडर फॉर्म, बट ओके। स्टिल शुगर, थोड़ी सी शुगर इज बेटर देन टेकिंग स्टीविया, नो? देखो नहीं, स्टीविया कैन बी अ गुड इफ यू कैन कंट्रोल, बट स्टीविया का ओके वो टेस्ट नहीं होता बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू हैविंग अ शुगर ऑलवेज, ओके। सो यू ओके। कैन हैव दैट, वो टेस्ट में तो फर्क होता ही है, बिकॉज आई हैव वेरी आई मीन आई एम इनटू अ न्यूट्रिशन ना, सो मेनी इयर्स से मैं हूँ, तो मेरे घर में आई हैव ऑलरेडी लोगों ने बनाया होता, तो आई हैव अ स्टीविया, आई हैव अ मोरिंगा, आई हैव अ लेमन ग्रास, आई हैव अ अजवाइन, ऑरिगेनो के भी प्लांट्स एंड ऑल, ओके। सो एवरीथिंग मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि चाय में दूसरी वाली ड्राई की बजाय हर्बल्स डालूं, मोरिंगा डालूं एंड ओके all ओके these are exciting, okay, so ओके। all these things, so stevia you can have and then you can add it, but वैसे भी आप खा लेते हो, थोड़ी सी क्रेविंग है, बट है क्या, दिस इज नॉट द थिंग कि आप हैबिचुअल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होना, इट्स नॉट। एंड राइट आपको राइट। पता है हैबिट्स कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करनी, इट्स अ डिफिकल्ट वन, यस यस। बिकॉज अगर ये ना एक तरह की ना डिपेंडेंसी है, सॉरी मैं दूसरा वर्ड हिंदी का यूज नहीं करना चाहती हूँ, जैसे नशा होता है ना, सो योर बॉडी एडिक्शन एडिक्शन, नो?
क्रेविंग्स फॉर टी, Crave. क्रेविंग फॉर मीठी टी, अगर आप थोड़ी सी टी की क्रेविंग हो रही है ना, एंड इफ यू रियली वांट टू हैव अ टी, एंड आपको थोड़ा मीठा भी उसमें कम अगर आपको मिलेगा ना, देन यू वांट टू, आपकी तसल्ली नहीं होती है, सो यू Right, right, बी right. सेटिस्फाइड एक्चुअली. दिस इज जस्ट अ डिपेंडेंसी, एंड ये आपकी हैबिट्स हैं विच हैव ऑलरेडी डेवलप्ड सिंस लॉन्ग इयर्स व्हेनेवर यू हैव स्टार्टेड टेकिंग. सो आपको इट एक्चुअली नीड लिटिल बिट कैसे कंट्रोल ऑन योर taste buds. Okay, Right, right, so right, yeah, right. with time you really need to change your habits change करनी पड़ेंगी taste buds, and it takes time. जो habits डली हुई हैं आपके taste buds को, तो उसको change करने में it takes time. But Right. afterwards ना, कई लोगों की बहुत आदत है खाना खाने के बाद मीठा खाना है, करना है, Mm-hmm. तो कार्बोहाइड्रेट की रेशो वैसे ही कर लेते हैं. खाना सिंपल कर लिया, फ्राइड नहीं खाएंगे, दाल फुल्का खाएंगे, बट आफ्टरवर्ड्स दिल हैव अ ब्राउनी, आफ्टरवर्ड दिल हैव अ रसगुल्ला और अ गुलाब जामुन. तो वहीं आई मीन you'll just make spoil all the meal, because you'll start having that food again straight away, such a good amount of the मीठा. ओके, Right, जो आपको हफ्ते 10 दिन में इतना खाना चाहिए वो नहीं खाना है. सो कार्बोहाइड्रेट यू शुड नॉट हैव. अच्छा, मैं right, आपको अभी, आपने किसी ने पूछा था तो मैं अभी बता देती हूँ आपको कि आपको क्या खाना चाहिए. Stop having the carbohydrates, stop having the lipids in your diet. Okay, because whenever you start having the proteins, now more proteins आपको लेने हैं, that should be limited. ओके, कल वाली प्रोपोर्शन एंड क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना है आपको. प्रोपोर्शन एंड क्वांटिटी से बाहर नहीं जाना है किसी को भी. एंड देन यू शुड स्टार्ट हैविंग द प्रोटीन्स, गुड प्रोटीन्स विच कैन बी अवेलेबल. एंड जब उसकी कुकिंग करते हो, कुछ करते हो ना, तो लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो. अगर आप पनीर की सब्जी खा रहे हैं, यू वांट टू हैव प्रोटीन्स फ्रॉम दैट, और आपका उसमें ऑयल का तड़का लगेगा ही लगेगा, कैप्सिकम साथ में डलेगी डलेगी, आपके स्पाइसेस डलते हैं, तो थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट, थोड़ा बहुत लिपिडिक का कंटेंट आपका ऐड होगा ही होगा. ओके, सो आप कहीं बच के भाग नहीं सकते कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड से, बिकॉज बट स्टिल हैव स्टार्ट हैविंग द प्रोटीन्स. आपने अभी ध्यान दिया कि मैंने आपको क्या बताया था, बिकॉज एवरीथिंग यू वुड ईट दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. ठीक है, जब आप प्रोटीन्स लोगे ना, अब आपको एक और चीज यहाँ क्लियर कर देती है. व्हेनेवर यू विल स्टार्ट हैविंग द प्रोटीन्स, तो होगा क्या, आपकी बॉडी में सबसे पहले क्या होगा, व्हाटएवर यू विल बी हैविंग that would be converted into the glucose. सबसे पहले अगर आप सपोज एक अपना माइंड में एक पिक्चर क्लियर लेके चलिए. यू हैव स्टॉप टेकिंग द कार्बोहाइड्रेट एंड स्टॉप टेकिंग द लिपिड्स. आपने लिपिड कार्बोहाइड्रेट को स्किप कर दिए, एंड यू आर एक्चुअली ऑलरेडी डिपेंडेंट अपॉन द प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड द विटामिन्स. ओके, ये चीजें आप ले रहे हो, रफेज खा रहे हो, वाटर कंटेंट अपना पूरा ले रहे हो. एंड देन व्हाट यू विल बी हैविंग, आपकी बॉडी के सबसे पहले जो ग्लूकोज, ऑब्वियसली बॉडी को ग्लूकोज तो चाहिए ही ना, ग्लूकोज पे डिपेंडेंट है. सो आपके सबसे पहले कौन से ग्लाइकोजन सोर्सेज लिवर से खत्म हो जाएंगे, बिकॉज ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द लिवर. एंड देन सबसे पहले ग्लाइकोजन उतना ही सिक्रीट होगा जितना आपको चाहिए, बिकॉज द ग्लाइकोजन सोर्सेज विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग द ग्लूकोज व्हेनेवर, एंड वो तब भी प्रोवाइड करता है व्हेनेवर यू आर स्टार्विंग. ठीक है, जब आप स्टार्व करते हो तो आपकी बॉडी को ग्लूकोज तो चाहिए ही चाहिए ना, तो इट स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन द स्टोर्ड वाला. स्टोर्ड ग्लाइकोजन सोर्सेज आते हैं और उतने ही आते हैं, व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड, उतने ही ग्लूकोज. but if you'll stop having that glucose and stop having that lipids for a longer days, for so many days, okay, for the long time, and then your whole of the glycogen storage will vanish. Okay, and then प्रोटीन अब, और हमारी बॉडी किस पे डिपेंडेंट होनी जाएगी, स्टोर्ड लिपिड्स पे भी डिपेंडेंट होनी शुरू हो जाएगी. एंड द प्रोसेस वुड बी कॉल्ड, पहले तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस होता है, ओनली देन दैट वुड बी प्रोवाइडिंग दी अस द बॉडी एटीपी मॉलिक्यूल्स. बट फिर क्या होगा, आपकी बॉडी अब लिपिड्स में ग्लूकोज स्टोरेज, ग्लाइकोजन स्टोरेज खत्म, एंड देन इट वुड बी स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोटीन्स एंड द लिपिड जो स्टोर्ड है, और जो प्रोटीन्स आप ले रहे हो डाइट में, और जो लिपिड स्टोरेज है उस पर डिपेंडेंट हो जाएगी. ठीक है, एंड देन the process would be known as a gluconeogenesis, and this gluconeogenesis पढ़ना आप आज. So this gluconeogenesis would be actually providing the glucose molecule, और glucose molecule, ये gluconeogenesis की जो definition है, that is actually the formation of the glucose molecules or the carbohydrates, or basically the glucose molecules other than the carbohydrate sources. क्योंकि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, और तो ग्लूकोज सोर्सेज से ही आएगा, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज आएगा, बिकॉज इट्स अ मोनोसैकेराइड्स. ओके, पॉली डाई ओलिगो को ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होएगा. बट whenever we have stopped taking the carbohydrates, तो स्टोरेज वाले भी अब खत्म हो गए हैं, क्योंकि हम बहुत दिनों से कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे हैं. जितने दिन चलेगा उतना स्टोर्ड वाला भी खत्म हो गया. नाउ वी हैव स्टॉप्ड टेकिंग द लिपिड्स आल्सो,
बट लिपिड भी हमारी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं, ओके। सो एंड देन फैट एडिपोज टिश्यूज में, सो हमारी बॉडी किस पे स्टोर्ड लिपिड्स पे डिपेंडेंट होनी शुरू हो जाएगी, ओके। बट आफ्टरवर्ड्स व्हाट विल गोइंग टू हैपन कि प्रोटीन्स हम ले रहे हैं, सो तो प्रोटीन से भी ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, एंड देन प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड्स हैं दे वुड आल्सो बी स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू टू ग्लूकोज, ग्लूकोज को प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो लास्ट हमारी जो एंट्री है जो ग्लूकोज की, वो ही सेल्स में एंटर करेगी, एंड देन द एटीपी मॉलिक्यूल्स वुड बी फॉर्म्ड। So in any case, from the proteins, from the lipids, stored हो कहीं से भी हो, that would be converting into the, that should be converted into the glucose, okay। ग्लूकोज लेने बंद कर दिए तो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जो वो प्रोटीन्स वाले मॉलिक्यूल्स में और भी काम करना होता, बट सम ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दे वुड बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज थ्रू द ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंड मोर ओवर जो स्टोर्ड एडिपोज टिश्यू है उसमें से भी लिपिड्स आके अब क्या होगा, सो दे वुड बी स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द ग्लूकोज बाय द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो होगा क्या, अब स्टोर्ड लिपिड्स आने शुरू हो गए, and they would be getting converted into the glucose, and glucose से एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, and because we are dependent upon the proteins, तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये वेट लॉस का एक मेथड है। सो स्टॉप हैविंग शुगर, स्टॉप हैविंग मीठा, स्टॉप हैविंग द स्वीट थिंग्स for after some time, and start having the proteins more, and lipids को बंद कर दो, lipid and glucose को, and then energy molecules तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, because protein would be going to provide you the energy। और बॉडी की वियर टियर का भी ख्याल रखिए कि मिनरल विटामिन भी आप लोगे, रफेज लोगे, तो क्या है कि आफ्टर फ्यू डेज द जो स्टोर्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ग्लाइकोजन स्टोरेज है that will be going to vanish, okay। And then the body would be going to start depending upon the process called the gluconeogenesis, and gluconeogenesis ke through lipids would be getting converted into the glucose molecules, okay। So the glucose molecule से होना शुरू हो जाएगा तो आपकी बॉडी के lipid storage would be going to start vanish। तो this is called the weight loss formula, simple। वेट लॉस की मेथड और डाइटरी आपको डाइट चार्ट आपको मिल गया है, तो आपने जो भी बनाना है उसमें से यू हैव टू स्टार्ट स्किपिंग द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द लिपिड्स, सिंपल। एंड आफ्टर फ्यू डेज इट टेक्स टाइम, बट फिर भी अगर बीच में फिर से कभी कार्बोहाइड्रेट ले लोगे फिर से वो बैक चला जाएगा प्रोसेस, ओके। सो दैट वुड बी गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्लाइकोलिसिस, फिर से वहीं आ जाएगा, ठीक है। सो स्टॉप हैविंग द कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। इसीलिए कहा था मीठा बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह से क्या हो जाता है, डायबिटिक रिवर्सल भी होता है, ओके। सो दिस इज द मेथड ऑफ द डायबिटीज रिवर्सल, बिकॉज इट कैन कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल्स, क्योंकि बॉडी में उतना ही ग्लूकोज बनेगा। आप इस बात को समझिए, जब आप खाते हैं ना तो अनलिमिटेड है, आपको पता नहीं है कि आप कितने कार्बोहाइड्रेट्स खा गए हैं, कुछ भी है, और जितना भी आपने खाया स्टमक वुड डाइजेस्ट होल ऑफ द फूड, उसने अनडाइजेस्टेड तो कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। दैट वुड बी डाइजेस्टिंग होल ऑफ द फूड, एंड दैट वुड बी होल ऑफ द फूड वुड बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। बट इफ विल स्टॉप टेकिंग द कार्बोहाइड्रेट्स, इफ विल स्टॉप टेकिंग द लिपिड्स, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस वुड बी गोइंग टू हैपन इन अ कंट्रोल्ड वे। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जितना ग्लाइकोजन स्टोरेज था, जितना ग्लूकोज रिक्वायर्ड है उतना ही बाहर आएगा। तो ओवर ग्लूकोज की तो होएगी ही नहीं ना प्रॉब्लम, ब्लड में ओवर तो आएगा ही नहीं। ये एक पॉइंट याद रखिए, इसमें फिर ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन रहते हैं, वेट लॉस भी होता है, डायबिटिक रिवर्सल भी होता है। डायबिटिक पहले कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी, देन इट वुड बी अ रिवर्सल to this, okay। So simply weight loss means diet have a carbs and sugars, don't have carb and sugars, and no lipids, okay। yes जयेश जी, ये बिल्कुल आप अगर लिपिड छोड़ देंगे और कार्ब्स छोड़ देंगे और प्रोटीन और मिनरल विटामिन्स लेंगे, रफेज लेंगे, मिलेट्स खाएंगे जिसमें कार्ब्स नहीं है, ठीक है, मल्टीविटामिन्स बेसिस, सो वेट लॉस होगा ही होगा, यू विल बी फिट, ठीक है। ये मैंने आपको दो मैम यस हाँ जी तन्वी जी। मैम लिपिड्स किन किन चीजों में होता है? लिपिड्स बेटा फैट, सारे फ्राइड चीजें, ऑयल, सारी चीजें ऑयली फैट्स, इवन इफ यू टॉक अबाउट दी बादाम खाते हैं हम, दैट इज आल्सो हैविंग द कोलेस्ट्रॉल, उसमें बड़े फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। तो आपको हर फूड को मुआयना करके रखना पड़ेगा कि इसमें ये होता है ये होता है। तो फूड तो बहुत वैरायटी के हैं, इवन बादाम, almonds, they also have the lipid molecules, they have a protein, they have a carbs, they have a lipid molecules also, they have a good amount of the cholesterol,
okay, but the good cholesterol. Avocado खाते हो, that is also avocado is a very good fruit जिसमें HDL होता है, which is actually a good cholesterol माना जाता है, ठीक है, good cholesterol. So है, fruit में भी है, avocado में HDL किसी का कम होता है ना, it's a good cholesterol. So he or she should start having that avocado because it provides you the HDL. इसमें LDL VLDL नहीं होते हैं. LDL VLDL, they are actually dangerous. Low density lipoproteins and the very low density lipoproteins, they are dangerous, but the HDL high density lipoproteins are not that dangerous, although it is actually it helps protecting in the coronary artery diseases, CVDs or CADs. ओके, सो आपको ये पॉइंट आउट है. लिपिड्स का मतलब, फैट्स का मतलब ये है कि एवरीथिंग विच यू ईट फ्राइड, उसमें ऑयल है, या फिर खाने में तड़के में जितना भी ऑयल लेते हो वो सब फ्राइड है. बट वही मैंने आपको कहा है कि इफ यू स्टार्ट हैविंग द वेजिटेबल्स, इफ यू स्टॉप हैविंग द कार्ब्स, बट जब आप सब्जी बना के खाओगे थोड़ा बहुत ऑयल तो आप डालते ही हो. उसमें कितने सारे स्पाइसेस होते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ खा रहे हो जिसमें थोड़े बहुत कार्ब्स एंड लिपिड्स तो चले ही जाते हैं. रूटीन में ना, डाइट में लिपिड्स एंड कार्ब्स से बचना थोड़ा डिफिकल्ट है. यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल. बहुत ही लिमिटेड चीज़ें फिर रह जाती हैं जो आप खाते हो, एंड उस पर फिर आपको करना तो पड़ता. बट फिर यू हैव टू हैव वन ऑप्शन, फिजिकली एक्टिव. जितना भी ग्लूकोज अमाउंट बनता है, जितना भी लिपिड बनता है, दैट शुड नॉट बी स्टोर्ड. आपको फिजिकली एक्टिव रहो, जितना खाया डाइजेस्ट हो जाएगा, जितना खाया डाइजेस्ट हो गया, जितना खाया डाइजेस्ट हो गया. डोंट लेट इट डिपॉजिट और अक्यूमुलेट इन द बॉडी. ओके, इसको बस सिंपली फिजिकल एक्टिविटी. So that's why yesterday I have given you the yesterday one of the recipe, one of the ideas and biochemistry ka, because this is whole of the biochemistry. You all have to study about the biochemistry if you really wanted to work upon these diets and all, because biochemistry के बगैर बात नहीं बनेगी. ठीक है, तो ये सारी चीजें, इट्स अ बायोकेमिस्ट्री. ऑल द प्रोसेसेस दे आर इन द बायोकेमिस्ट्री ओनली. बायोकेमिस्ट्री के थ्रू ही आपको ये मॉलिक्यूल्स एंड ऑल पता चलेगा. ठीक है, इसमें है डिटेल में, बट अगर ज्यादा डिटेल में है तो आप अपनी बायोकेमिस्ट्री की एनी ऑफ द बुक यू कैन एक्चुअली स्टार्ट रीडिंग. ठीक है, एंड देन ये सारी चीजें आपकी डायबिटिक एंड द वेट लॉस एंड द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको सेव करने में आपको हेल्प करती हैं. ठीक है, सो गोइंग फर्दर, एनर्जी गिविंग फूड. और आपको ये सब भी याद रखना. अब देखिए, 4 किलो कैलोरीज are provided by the 1 gram of the carbohydrates, and 9 kilocalories they would be provided by the 1 gram of the fats, and the protein would also be giving. Protein and carbohydrate energy same provide करते हैं. ठीक है, so protein sparing action. अब हमने ये भी पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो एनर्जी गिविंग फूड्स और जितनी वैल्यू होती है एनर्जी की किलो कैलोरीज में, और दूसरा प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन. ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. जितने भी क्वेश्चन उठा के, क्वेश्चन पेपर्स पुराने DNHE के उठा के देख लो, you would be getting the protein sparing action question in almost in many of the question papers. Okay, so protein sparing action है क्या? कहते हैं whenever we would be like having insufficient amount of the carbohydrate, diet will force our body to break down the protein and release the energy instead of the using them in the body's growth and development. अब एक और प्रॉब्लम आ जाती है ना, क्योंकि whenever you stop having the carbs and the lipids ना, so you should be dependent upon the proteins. Okay, तो जो proteins आप लेने शुरू करोगे ना, तो जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेने पड़ते हैं हमें, बिकॉज अगर हम लिमिटेड अमाउंट में भी प्रोटीन्स लेंगे ना, अगर हम स्टॉप करते हैं, तो ये कंडीशनल है. व्हेनेवर यू स्टॉप हैविंग द कार्बोहाइड्रेट एंड द लिपिड्स and you are dependent upon the protein, so increase the amount of the proteins, because proteins का basic function क्या है? बॉडी की growth, prophylactic and the regulatory mechanisms में. And because you have stopped taking the carbohydrates, so all the proteins they'll start getting converted into the carbohydrates, glucose में convert होना शुरू हो जाता है, तो उनका main function रह जाता है. So if you'll stop having the carbohydrates in your diet, so जो basically proteins का amount अगर आप increase नहीं करेंगे, then you'll start having the problem. So increase the amount of the protein, so that protein का sufficient amount है, तो some of the proteins that would be getting converted into the glucose, but some other proteins, the sufficient amount of the proteins can perform its own functions for the body's growth and development. Okay,
सो तो कार्बोहाइड्रेट अगर सफिशिएंट अमाउंट में लिए जाते हैं ना, इफ you'll have it, so energy needs of the body and that would be spare the proteins for their important functions and the basic roles proteins के करते हैं, supporting growth and the body building, and sparing the proteins for the function is terms as the protein action of the protein sparing action of the protein. So ये एक बात आपको याद रखनी है, if you'll stop having the carbohydrates and the lipids, the proteins would start getting converted into the carbohydrates or the glucose through the process called the gluconeogenesis. Okay, but अब आप देखो कि proteins they have to perform the different functions, तो carbohydrates नहीं है तो बाकी चीजें छूट जाएंगी. So you have to have the more of the protein so that sufficient amount of the protein they can get converted into this carbohydrates, so that energy currency would also be produced. But the proteins, remaining proteins, should be in sufficient amount so that they can perform their usual function for which they are meant for. Okay, so uh, so if you'll start having the limited or sufficient or efficient amount of the carbohydrates which is required for the body, not more proteins. Okay, so so carbohydrate would start doing its own functions. There is no need for the gluconeogenesis. There is no need for the proteins to be getting converted into the glucose molecule. ठीक है, so the glucose molecule and the protein would be performing its own functions, so they are spared to do their own functions. They need not to get converted into the glucose molecules, so they are spared. So this is called the protein sparing function. But proteins are not spared if you do stop having the carbohydrates. You can have the good amount of the carbohydrates so that the carbohydrate they can perform their own function, and they can spare the proteins to perform its own functions. Okay, but in that case weight loss is difficult. Okay, weight loss would be difficult, but stop having in a limited amount of the sugar. But you won't be finish the glycogen storage in that case, and you won't be sparing the but in that case it's not only the protein sparing, it's the actually the lipid sparing also. Okay, because the lipids they will also not undergo the gluconeogenesis, and the weight loss would not be possible in that case. Okay, so if you want that diabetic reversal, and if you want to have the weight loss, then you have to depend upon the proteins, and the proteins should be increased in case you stop having the glucose carbs and the lipid molecules. Okay, or the fat molecules. Okay, utilization of the fat is also there, because some of the amount of the carbohydrate is needed for the proper utilization of the fats, and this is also one of the thing, because it's not that easy, क्योंकि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके साथ हमारे लिपिड्स की होती है डाइजेशन. ठीक है, एंड कुछ ऐसे लिपिड्स हैं जिनके साथ हमारे प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है, and some of the lipids they are transferred to their basic protein membrane contents, because lipids भी हमारे 100% हम नहीं कर सकते हैं. So it's not that easy to control our body mechanisms, because everything is mandatory. तो lipids are also required for the proteins, and proteins के साथ ही lipid का movement होती है through the blood, and then they are absorbed. But they are the basically major component of the plasma membrane. अगर lipids 100% आप less कर देते तो plasma membrane की permeability भी खत्म हो जाती है, and cholesterol भी अगर low चला जाएगा, then also the permeability of the plasma membrane through which the glucose enters into the cells, semi-permeable membrane है. तो protein receptors, protein bound, membrane bound enzymes, membrane bound sodium potassium ATPase pump, calcium ATPase pump, they'll also start suffering. So 100% हम कभी भी कम नहीं कर सकते. So you should have the balanced food. Okay, so physical activity, sedentary lifestyle, you have to opt it. So now you got it. You have to have less carbohydrates, less lipids, not 100% skip नहीं करना, and little bit increase more of the proteins, but quantity and proportions according to the sex, hormonal system, age, and body weight should be there. Plus the physical activity. You cannot just skip. कल से मैं जब से पढ़ाना शुरू किया, मैं आपको फिजिकल एक्टिविटी की ही इम्पोर्टेंस बता रही हूँ. विदाउट फिजिकल एक्टिविटी, विदाउट वॉकिंग, विदाउट जिमिंग, विदाउट किसी भी तरह की, वट एवर यू आर ऑप्टिंग, घर में भी काम है वट एवर, बट सम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, वॉक एंड ब्रिस्क वॉकिंग इज मैंडेटरी. मतलब फिजिकल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल तो
बीमारियों को एक्चुअली दैट इनविटेशन टू मोस्ट ऑफ द डिजीजेस इफ यू ऑप्ट फॉर द सेडेंटरी लाइफस्टाइल. सो ये तो आपको अब पता चल रहा है इफ यू हैव स्टार्टेड स्टार्टिंग. तो ये तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल यू कैन नॉट जस्ट ऑप्ट एंड द फिजिकल एक्टिविटी शुड बी देयर. तो फिजिकल एक्टिविटी को आप किसी भी केस में किसी भी तरह से आप एंडोर्स नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट अगेंस्ट ऑल दीज थ्रू दिस ओपन पोर्टल दैट जो लोग कहते भी हैं कि वेट लॉस हो जाएगा, ये खाओ वो खाओ, डाइट देंगे आपको, हिलने की भी जरूरत नहीं है विदाउट फिजिकल एक्टिविटी. सो दिस इज नॉट मैंडेटरी. दिस कैन नॉट जस्ट हैपन. नाउ यू पीपल आल्सो हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अगर आप बायोकेमिस्ट्री बॉडी के अंदर के सिस्टम को जाने, अभी तो इट्स बिगनिंग. व्हेनेवर यू विल स्टार्ट हैविंग दिस मोर ऑफ द नॉलेज देन यू विल बिकम टू नो कि फिजिकल एक्टिविटी के बगैर एंड तो आप की एक्टिविटी और इट्स जस्ट अ मिथ. बीमारियों को आप ज्यादा इनविटेशन देंगे if we say that. Okay, so this is not mandatory. We are the persons who are actually pursuing in the nutrition. So we have to make it's a noble cause if you're pursuing in this I mean this profession. So you have some major and noble duties to make the persons they are healthy and start working on the clinical and the therapeutic persons. मतलब पढ़ना शुरू कीजिए whenever you opt for this profession and then करना शुरू करेंगे आप. बट लोगों को बीमार नहीं करना है. वी कैन नॉट जस्ट मेक बिकॉज इट बिकम्स आवर ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी टू मेक द पर्सन्स हेल्दी. ओके, सो खाना डाइजेस्ट करवाना और प्रॉपर एंड स्टेमिना डाउन ना जाए. सो इट वुड बी इट बिकम्स आवर ड्यूटी. ओके, सो अगर आप जितनी जल्दी इसको पहचानेंगे उतनी जल्दी आप इस प्रोफेशन में कामयाब होंगे एंड यू स्टार्ट having interest in this. Okay, start working on this. So आगे अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. सॉरी मैं थोड़ा मोटिवेट करने लग जाती हूँ बिकॉज इट्स माय ड्यूटी एंड आई एम ऑलरेडी इनटू दैट. सो प्लीज स्टार्ट कीप बेयरिंग विद मी. मुझे होना शुरू हो जाता है एंड देन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स टॉपिक में. जैसे ही वो टॉपिक आता है सो आई विल स्टार्ट दैट. ओके, and digestion and absorption and utilization is the next one as we have discussing the carbohydrates. So the digestion of the carbohydrates actually involves, which we have already discussed. Okay, so so this is the breakdown of the starch or the sugar molecules, polysaccharide, disaccharides, oligosaccharides or the monosaccharides also. ठीक है, and it would also be all the carbohydrates, different kind of the classes, they would be actually getting converted into the glucose. So other carbohydrate substances like the dietary fibers present in the whole grains or in the vegetables or in the fruits cannot be digested by the human beings because of some of the chemical and some of the enzymes. Again and again is mentioned in the books. We have already discussed about all these things. Okay, so the digestion and absorption we have discussed. All these things. Kindly keep going through your books because you will be like already अगर आप साथ के साथ पढ़ेंगे ना so आपको पता चल जाएगा. So मैंने जो आपको बताया, now there is would be the definition of the which is called the satiety value. Okay, so this is also important. ये आता है same definitions आती हैं, छोटी आए बड़ी आए, 2 नंबर की आए, 1 नंबर की आए, 4 नंबर की आए, कहीं भी. So this would come into that. Okay, so some of the satiety feeling पता क्या होता है, some of the digestive tract components fiber absorb water. हम फाइबर्स को फिलिंग के लिए ना वी एक्चुअली स्टार्ट ऑप्टिंग फॉर दैट. तो उसमें ना फाइबर कंटेंट बहुत होता है. तो बेसिकली हम मिलेट्स पे और इन सब चीज़ों के पे जाते हैं. सो अगर हम थोड़ा भी खाएंगे ना तो सम ऑफ द कार्ब्स जो फाइबर बेस्ड होते हैं ना दे एक्चुअली रिक्वायर मोर ऑफ द वाटर. सो आजकल ये जो मिलेट्स लोग करते हैं ना, प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए. जो भी whenever we'll start having ना, आप देखो मैं आपको एक जनरली समझा रही हूँ. हम ना खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो भी खाते हैं तो आटा गूंथते हैं मैदे का या आटा सिंपल व्हीट का. बट जो मिलेट्स होते हैं ना, इनका जो आटा होता है ना दैट रिक्वायर्स मोर ऑफ द वाटर कंटेंट. ओके, लेकिन जब इसकी रोटी भी बनती है ना वो इतनी सुंदर नहीं होती है जैसे मैदे की और आटे की होती है ना. दैट इज मोर वाइटिश, ये टुवर्ड्स द ब्राउनिश होती है. ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो ड्राइड. अगर आप हल्की सी भी लेके इमीडिएटली बना के खाते हो ना तो वो थोड़ी ड्राइड होती है. एंड देन बट आपको पता क्या है, लोगों को मिलेट तो चल जाता है सारी जगह. मिलेट्स खाओ, पर्ल मिलेट है, डिफरेंट काइंड ऑफ मिलेट्स हैं. ठीक है, इसकी डिफरेंट वेरिएशंस में खाओ, सब शुरू हो जाते हैं यूट्यूब से और कहीं से भी. बट एक चीज़ है, लोगों को मिलेट्स खाने के बाद दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, उनकी इंटेस्टाइनल चोकिंग शुरू हो जाती है.
Okay, so the intestinal choking would be going to start because the millets, they require for absorption for eating more of the water. So you have to add more water whenever you'll start having the millets. Okay, so if you stop, because we start having the millet ingredients, millet rotis, okay, and then stop having the water, because we keep on we are usually busy in whole of our life. Okay, whole of these days सारा दिन काम करते हैं, and then 2-3 hours we forget to have the water. But this is actually making people sick, intestinal problems आनी शुरू हो गई हैं if they'll start depending upon the because this is not the new things. Millets are not new things. This is an older food. We are जो forefathers थे या हमारे बुजुर्ग थे या जो हमारे parental और grandfathers थे ना, ये they usually work in the fields, agricultural fields, and then they used to have the millet, बाजरा की, ज्वार की रोटियां they used to have. But they actually work in a field, and then they have a perspiration, then they have a usually they have a lot of water, and then they usually don't have that kind of a problems. But now these days we have a sedentary lifestyle, we are working in our offices, we have usually these sitting jobs all together, and then we have a ACs and all, perspiration ka to sawal hi nahi hai. And then because we are so much busy in our jobs, and we forget to have a water content. Okay, so that is creating a problem. If फायदे millets के ज़्यादा नहीं होंगे, and then they start creating a problem. So along with, you should have all the indications. ये YouTube and all देख के सब follow करना है, but उसके please contraindications जो साथ में है points हैं उनको follow कीजिए, पहले पढ़िए, and then you can actually सबको millets पे dependent नहीं बना देना. उससे अच्छा तो आप you can have a wheat flour, उसमें थोड़ा सा mix करो बेसन and all. Okay, then you can have, अगर आपको पानी नहीं पीना, अदरवाइज याद रखिए कि आज आपने मिलेट का फुल्का खाया, तो यू शुड हैव, अदरवाइज वो फाइबर सारा आपकी मेम्ब्रेन से, म्यूकस मेम्ब्रेन से, दैट विल स्टार्ट गोइंग टू हैव द वाटर. आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, सेल्स में जो वाटर है उसने एब्जॉर्ब करना शुरू कर देना है. तो इंटेस्टाइन की वॉल, स्टमक की वॉल से जब श्रिंकेज होनी शुरू हो जाएगी सेल्स की, देन यू विल बी हैविंग मोर प्रॉब्लम्स. जस्ट स्टार्ट थिंक अबाउट दैट. ओके, सो स्क्वीजिंग ऑफ द वाटर वुड बी स्टार्ट, क्योंकि उसने अब्सॉर्ब करना, उसने कर लेना, वो जो मेम्ब्रेन्स है उनकी डैमेजिंग स्टार्ट हो जाएगी. सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट. मतलब बिल्कुल ही ब्लाइंडली स्टॉप, आई मीन फॉलोइंग समथिंग एल्स, कुछ भी, चिया सीड्स भी, कुछ भी, कोई सोचता नहीं है. ग्लाइकोसाइड्स हैं, आई मीन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर मोर इनटू दैट. बच्चों को भी दे रहे हैं, पानी में भी, स्कूलों में भी जा रहा है. सो प्लीज डोंट स्टॉप हैविंग दोज थिंग्स ब्लाइंडली. ओके, बिकॉज हर चीज में एक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सो दैट शुड बी एक्चुअली हर चीज का देखो क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शंस, व्हिच आई एम टेलिंग यू सिंस येस्टरडे. बिकॉज बिकॉज क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शंस, सेक्स, एज, ठीक है, रिक्वायरमेंट बाय द बॉडी, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दैट. ओके, उसके बगैर यू शुड स्टॉप हैविंग दोज थिंग्स की चिया सीड्स हैं, यूट्यूब पे बताया स्टॉप हैविंग. मदर्स भी रात को इतना भिगो देना सारा दिन, फिर चिया सीड की बॉटल चलती है. सो दिस इज नॉट गुड. यू हैव टू हैव अ लिमिटेड अमाउंट व्हिच इज रिक्वायर्ड, एंड द बायो अवेलेबिलिटी ऑल्सो शुड ऑल्सो बी चेक्ड, बिकॉज एवरी इंग्रेडिएंट्स, बच्चों को क्या जरूरत है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की एंड ऑल, एंटीऑक्सीडेंट, आप मल्टीविटामिन दीजिए. I mean, you are having the other ingredients also. चेक तो कीजिए कि आपके अपनी फूड में वो इंग्रेडिएंट्स ले तो नहीं रहे हैं ऑलरेडी. आप फूड भी बैलेंस खा रहे हैं, फिर एडवांस न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, पिन्नियाँ पंजीरियाँ भी विंटर्स में यू मेक यूजुअली, एंड देन फिर चिया सीड्स भी है, फिर गोल्डन मिल्क भी है, फिर हल्दी का दूध भी पी रहे हैं हम, फिर हम सॉरी वो क्या फिग्स होती हैं वो भी खा रहे हैं हम, सीड्स भी खा रहे हैं हम, आजकल सीड्स का मिक्सचर आ रहा है. मतलब स्टॉप हैविंग एवरीथिंग एट ए टाइम. और किसी को भी अगर गाइड करना है, यू शुड मेक अ स्केड्यूल कि आप रोज का, आज आपने अगर आपने सीड्स खाए हैं, ड्राई फ्रूट लिया है, दूसरे दिन आप चिया सीड्स लीजिए, तीसरे दिन दैट शुड बी इन अ लिमिटेड अमाउंट, एंड दैट शुड बी एक्चुअली स्किप. एनर्जी कैलकुलेशंस होनी चाहिए, मील प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है. सो उसके अकॉर्डिंगली लिमिटेड अमाउंट, एंड दैट शुड बी बाय अवेलेबल. ठीक है,
आप उसमें ऐसी चीज लीजिए जो आपको चाहिए, आपकी बॉडी को चाहिए, अकॉर्डिंग टू पर्सनलाइज्ड। 3 वर्ड आप हमेशा याद रखिए, पर्सनलाइज्ड, क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शन। These words should not skip. Whenever you are actually modifying your food, या आप कुछ ऐड कर रहे हैं, या आप आपकी वीट की जगह मिलेट्स की चपाती लेना शुरू कर रहे हैं, सो यू शुड हैव अ लॉट ऑफ वाटर। उसके साथ वो भी तो देखिए ना, आप कुछ ऐड भी तो करना है। सिर्फ चपाती ऐड कर ली, बाकी सब वैसा ही है। चिया सीड ऐड कर लिए पर बाकी कुछ स्किप नहीं कर रहे हैं। गॉट इट? ये पॉइंट्स प्लीज, आप मील प्लानिंग बहुत बड़ी चीज होती है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप डॉक्टर से भी ज्यादा, आजकल डॉक्टर्स भी डाइटिशियंस की हेल्प क्यों ले रहे हैं, और लोगों को भी समझ आ गई है, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द डाइटिशियंस। लोग डाइटिशियंस के पास इसलिए जा रहे हैं बिकॉज एवरीबडी इज जस्ट फेड अप ऑफ हैविंग दी कॉन्टिन्यूस मेडिसिन ऑल्सो। दे रियली वांट दैट डायबिटिक रिवर्सल हो जाए कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से, एंड ये सारी क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे ही डिपेंडेंट है, बिकॉज दे आर लाइफस्टाइल डिजीजेस। कोई सिडेंटरी लाइफस्टाइल से है, कोई लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑब्वियसली से है, या फिर कोई स्ट्रेस से है, किसी तरह से है, एंड ऑल दीज आर लाइफस्टाइल डिजीजेस, एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही वो ठीक होती हैं। एकदम से मेडिसिन नहीं छोड़नी है, बट स्लोली स्लोली यू विल हैव द मॉडिफिकेशन इन योर डाइट, सो दैट स्लोली स्लोली आपकी मेडिसिन छूट जाए। अब ऐसे नहीं कि एकदम से, या तो पहले मेडिसिन पे आने ना दो, एंड देन यू शुड स्टार्ट हैविंग द मेडिसिन्स, and then you should start opting for the modifications in the food, so that you should stop having the medicines, okay? Until biochemical testing के बगैर जो clinical cases हैं, जो general tests हैं, general cases हैं, then you can have it, okay? So all these things are very mandatory. बिल्कुल ही ब्लाइंडली कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं करनी। एंड देन एलिमिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लाइक हम सेटाइटी वैल्यू की बात करते हैं, व्हेनेवर वी विल स्टार्ट हैविंग दी दिस फाइबर, सो वी शुड हैव द लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज उससे एक स्टाइटी की फीलिंग भी आती है। ठीक है, अगर आप लॉट ऑफ वाटर लेते हैं तो यू विल हैव अ स्टाइटी फीलिंग, सो यू डोंट हैव द क्रेविंग फॉर द लिपिड्स एंड मोर ऑफ द फूड एंड द सम काइंड ऑफ द स्वीटी थिंग्स। सो आप बच जाते हो उस क्रेविंग से, so that you should not have the craving for more food because you have a satiety feeling, okay? Then elimination of these fibers, if you'll start having the fibrous foods, the fibrous helps in the easy elimination of unabsorbed foods from the fecal material. So fiber are present in the stools and make the softening, so easy stool making, passing of the stools ho jata hai, and they are preventing of the relieving the constipation also. And good idea to have the fibers, more of the fibers in your diet, so like the cereal, pulses and the vegetables also. So हमारी जो बॉडी में मिलेट्स एंड दी फाइब्रस फूड लेने का एक फायदा है, दैट बिकॉज यू विल हैव लॉट ऑफ वाटर, so toxins भी remove होंगे because you'll have a lot of you passing the urine, and then the fecal material would also be softening, and plus the satiety feeling, so उसके हमेशा benefit होते हैं, but if you start having the lot of water, okay? So elimination of the fibers is also, so they actually help in the weight loss in that way if you properly follow all the precautions, and prevention of the disease like cancer and diabetes and the heart diseases. Many of the research studies now, they have also explained that the having the fibers, and they can actually save from the colon cancer or the large intestine, because they have the cleaning power, detoxification power, and lot of the water molecules you'll be having. So these are having these kind of the positive impact on your body, okay? So the whole cereals, refined cereals को अगर हम बात करें तो वो क्या है? So we have a 3 main parts of the bran. किसी भी ब्रांड की, किसी भी सीड की बात करें, so we have a 3 main parts. सबसे पहले एक ब्रांड होता है जो कि जर्म है और द एम्ब्रियो है, विच इज ग्रोइंग द प्लांट, जहां से एक ग्रो करता है प्लांट। उसके बाद एक आता है एंडोस्पर्म, जिसमें हमारे उस फूड के इंग्रेडिएंट्स फूड के स्टोर होते हैं, एंड ग्रो करता है एम्ब्रियो। एंड द ग्रेन विद द आउटर कवरिंग, जो बेसिकली ग्रेन होता है उसकी फिर बाद में एक आउटर कवरिंग होती है जो एक होल ग्रेन बनाती है, सीरियल को एक ग्रेन बनाती है, ठीक है? सो द होल सीरियल में क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ ही होता है, लेकिन जब हम उसको जितना ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे, जितना ज्यादा बारीक और जितना ज्यादा पाउडरी फॉर्म में करेंगे, तो इसकी प्रॉपर्टीज, स्टोर्ड फूड और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, दे आर गोइंग टू वैनिश। जैसे हम होल ग्रेन है, उसका अगर मोटा आटा पीसेंगे ना, मोटा मोटा रखेंगे, थोड़ा थिक एंड विद
छानना नहीं है, एंड देन यू शुड कीप दोज थिंग्स, सो दैट वुड बी आर मोर बेनिफिशियल. बट अगर आप उसको और बहुत ही ज़्यादा कोर्स फील करेंगे या ठीक है बना देंगे, सो द मैदा एंड द सूजी दे आर द फर्दर क्लीनिंग रिफाइनिंग हो जाएगी. उसमें से पता क्या होता है, आपका ब्रेन एंड जर्म जो जिसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है, वो आपकी खत्म हो जाएगी, उसका बेनिफिट नहीं रहेगा. ठीक है, उसी का. सो जो ग्रेन है उसको कम पीसिए. उसमें आपने ना पिक्चर भी दिखाई हुई है. अगर होल बीज का आप देखें तो इंटरनल एक जर्म होता है जिसमें स्टोर होती है एनर्जी, एंड एक एंडोस्पर्म होता है, और बाहर ब्रेन कवरिंग होती है. इसको आप कितना कम पीसेंगे ना, सो यूल बी हैविंग मोर बेनिफिट्स. अगर आपने इसको जितना ज्यादा बारीक पीस दिया तो आपकी जर्म की एनर्जी भी चली जाएगी, एंडोस्पर्म के भी फायदे नहीं रहेंगे, एंड जो ब्रेन है बाहर का उसके भी बेनिफिट्स नहीं आपको मिल पाएंगे. Okay, so now coming to the water. Water कितना beneficial है, because we have actually discussed about the cereals and the germs and all, और roughage and fibrous, because इसमें हमारी water absorption और satiety feeling आती है because the water is absorbed, and water is actually essential for life. हमारी body में Ma'am, 70% water ही है. can you tell me which rice is better, means brown rice, basmati rice, or parmal rice, means many rice are there. So which is better? कच्चा चावल पता नहीं कौन कौन सा. Brown rice. Brown rice. Okay. ओके. देखो, बट सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं. सो ब्राउन राइस इज मच मोर बिकॉज उसकी पॉलिशिंग एंड ऑल नहीं होती है. ठीक है, हुई होती है, सो इट्स ना लिटिल बिट मोर पहले प्रीवियसली फॉर्म है. तो जितना आप पॉलिशिंग ऑफ आपकी ग्रेन्स को, दालों को, लेग्यूम्स को अवॉइड करेंगे ना, जितनी सुंदर वाली चीजें होती है ना उनके कम फायदे होते हैं. देखो, मैदा देखने में सुंदर लगता है, वाइट रोटी बनती है, सॉफ्ट बनती है, बेनिफिट कोई नहीं है. ठीक है. पॉलिश्ड राइस, पॉलिश्ड लेग्यूम्स, दे आर बेनिफिशियल. उनकी बाहर से ही उनका ब्रांड ही रिमूव हो जाता है व्हेन यू आर. देखने में चमकती हुई दाल, जितनी गंदी सी डल सी दाल है, ब्राउन है, और रोटी जितनी ब्राउनिश है, ठीक है, और उनके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं जो मैंने नेचर में ऑब्जर्व किया है, वट एवर, बिकॉज व्हेन वी डील विद दोज थिंग्स. जितनी गुड लुकिंग चीज़ें होती हैं उनके बेनिफिट्स कम होते हैं. पिज़्ज़ा कितना गुड लुकिंग है बट उसके बेनिफिट कोई नहीं है. ठीक है, रोटी जितनी वाइट होगी, मैदे की होगी, सॉफ्ट होगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं है. जितनी ब्राउन होगी, रूखी सी होगी, दैट इज मोर बेनिफिशियल, बट उसके साथ वाटर इनटेक आपको ज़्यादा करनी है. ठीक है. आपको पकौड़े दाल में तल के कितने टेस्टी लगते हैं, और जिसमें आपने तेल कम डाला वो दाल सब्जी टेस्टी ही नहीं बनती है. ठीक है. सो आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए कि जितनी गुड लुकिंग और टेस्टी चीज़ें होती हैं ना, वो कम फायदे वाली होती हैं. देखना अपनी जिंदगी में इसको आजमा के. दिस इज जस्ट अ कॉमन प्रैक्टिस विच आई हैव बीन डूइंग. ठीक है. जितनी सुंदर चीज़ें हैं ना वो कम बेनिफिट देती हैं, जितनी कम सुंदर चीज़ें हैं ना उनके बेनिफिट ज़्यादा हैं. जितनी मक्की की रोटी है, जितनी बाजरे की रोटी है, जितना ब्लैंड फूड आप खाते हैं, जितनी घिया की सब्जी है, ठीक है, और वो कम तेल में या कम चीज़ों, मिर्चें मसालों के साथ बनेगी, वो ज़्यादा बेनिफिट देती है. ठीक है. सो ये एक जनरल फीलिंग है, ये बुकिश नहीं है, बट वेन एवर यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग ना तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी. ठीक है. सो वी वर कंसंट्रेटिंग ऑन द वाटर. सो द वाटर इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. दो हाइड्रोजन होंगी और एक ऑक्सीजन को मिलके वाटर बनता है 2:1 की रेशो में, 2:1 की रेशो में. ठीक है. इसके फंक्शंस क्या है? सबसे पहले जो वाटर है वो मेजर कंपोनेंट है अपनी बॉडी का, ब्लड का और लिम्फ का मेन कंपोनेंट है. सेल के अंदर भी, साइटोप्लाज्म में भी 75% के अराउंड वाटर ही होता है. फ्लोई सिस्टम है, यूरिन का सिस्टम, यूरिन में भी वाटर कंटेंट है. तो वाटर इज एवरीवेयर. ओके. एंड वेट जो भी है, टोटल वेट हमारी बॉडी का 75% वाटर से ही होता है. ठीक है. वाटर इज मीडियम फॉर बॉडी फ्लूइड, ब्लड में, सलाइवा में, डाइजेस्टिव जूसेस में, यूरिन में, फीकल मटेरियल में, स्वेट में, पर्सिलेशन में. सो वाटर इज एवरीवेयर. ओके. सो वाटर जो है वो सबसे पहले क्या करता है? वाटर हमारा रेगुलेशन टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर को करने में, because whenever the body temperature raises, so you should have a lot of water so that it should regulate the body temperature. It helps in this, and it is actually a help in the digestion of the carbohydrate, proteins, lipids, because it's a medium.
एंड अगर गैस्ट्रिक जूसेस हैं उसमें भी वाटर कंटेंट है, एंजाइम जूसेस सीक्रेट होते हैं तो देन ऑल्सो देयर इज अ वाटर कंटेंट। ठीक है, अगर आपके लिपिड है, प्रोटीन्स है, दैट इज ऑल्सो डाइजेशन जो है पूरी की पूरी आपकी वाटर कंटेंट पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर वाटर लॉस हो जाता है देन ऑल्सो इवेपोरेशन हो जाती है आपकी बॉडी में, सो यू वुड बी एक्चुअली start suffering with the diarrhea, evaporation. Okay, so the evaporate loss of water content. Okay, so the body temperature would also be needed. Okay, diarrhea of the cells maybe a shrinkage of the cells and all. So एक ये तो universal solvent है, everybody knows. ठीक है, many of the career of the blood remove होके आपकी body के जो transport mechanism में भी ये help करता है। ठीक है, the property of the water makes it essential for all the chemical reactions taking place in the body. अगर देखो रूखा सा सिस्टम है, म्यूकस नहीं है, तो अगर वाटर नहीं है तो आपका बफरिंग सिस्टम नहीं है, ब्लड सिस्टम नहीं है, तो कोई भी डाइजेशन वुड नॉट बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वाटर कंटेंट। ओके, तो बॉडी वाटर जो है ना वो बात देती है बॉडी की सेल्स को, उनको की दैट वुड बी एक्चुअली कीपिंग द मॉइस्ट एंड वेयर एवर द लुब्रिकेंट इज नीडेड, तो वाटर कंटेंट का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अ ग्रीसिंग ऑफ द बॉडी, lubrication of the body is not would not be there. Okay, so water is present in the saliva and the digestive juices also, and the passage of the into the digestive tract, अगर water नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, and it is the main ingredient of the lubricants of the joints too, otherwise joint pains हो जाएंगी। ठीक है, so the ingestion of the water in form of the liquids कैसे होगी अगर आपने लेनी है, हर किसी बेवरेज में स्टार्टिंग फ्रॉम द टी, कॉफी, फ्रूट जूसेस, एनिडेटेड ड्रिंक्स, वाटर इज द मेन कंटेंट अगर आपको लेना है। Okay, simply water and others drinks are also containing the water content. Okay, ingestion of the water in the form of the solid food, so the water is present in the major of the food stuffs also, मैंगो है, पपाया है, पाइनएप्पल्स हैं, सब में वाटर कंटेंट होता है फूड स्टफ्स में। सो द जो इट इज अ वाइटल एंड द वाटर ड्रिंक इज सेफ एंड द सेफेस्ट एंड फ्री फ्रॉम द जर्म्स। आपको स्टरलाइज्ड वाटर का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अगर इन्फेक्टेड वाटर पियेंगे देन ऑल्सो देर आर चांसेस ऑफ हैविंग द डायरिया, कॉलेरा। ठीक है, ये सब होने के भी चांसेस हैं। सो हैव वाटर बट safe water. Okay, so water is formed in the body to form the metabolic nutrients, and some of the ना हमारी body में whenever we eat carbohydrates and all और biochemical reactions होते हैं तो by product भी बनता है, वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट भी होता है हमारी जो बॉडी में। वेन एवर वी रिस्पायर ना, वी टेक द ऑक्सीजन एंड वी इनहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, तब भी हमारी बॉडी में साइड वाइज वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बिकॉज दैट्स अ डाइजेशन, दैट इज कमिंग फ्रॉम द डाइजेशन। ओके, एंड और हमारी बॉडी से लॉस कब होता है, इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन और इन द फॉर्म ऑफ द स्वेट और पर्स्पिरेशन थ्रू द स्किन, एंड यूरिन की फॉर्म में एंड फीकल मटेरियल के साथ भी कई बार होता है, और सेलाइवा में भी से भी सिक्रीट होके हमारी बॉडी से निकल जाता है। सो वी हैव टू हैव वाटर as a plain water, safe water, or in the form of the beverages which I have already named. So keep on having the water because water balance बहुत ज़्यादा ज़रूरी है to maintain the temperature, to maintain the homeostasis of the body. वाटर बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो आई थिंक हियर आई फिनिश विद दिस थिंग, so we'll meet next day because the topic is actually started and the time is very less, like 20 minutes hai, if I'll start the next topic so it won't be finished, so next time क्योंकि हमने next week लेनी है, so I don't want to start a new topic. Okay, so we'll be going to start a new topic in the next week, so we'll be going to finish some new topics of regarding the digestion next week. So see you Good and evening, ma'am. hopefully yeah, हाँ जी, Sorry for yeah, interruption. we are open for Actually, कुछ floor doubts for था मुझे. conversations. Yep. So I had some few doubts. As you explained today regarding the carbohydrates and lipids, can you tell me how much it is required to be consumed in a day? Like, what is a वो ideal yes, आपने percentage? देवांशी आपने कल क्लास शायद अटेंड नहीं की है, वो हर किसी के लिए फर्क है। ओके, so carbohydrate, lipids and the proteins and the balanced diet, if you talk about for every person na, that is different for every person. So yesterday I have used the personalized words, so how can you compare me with the 4-5 years old child? Okay, and how नहीं, can you compare the 5-6 year child with the adolescent girls, and how can you compare the same diet for the lactating mother or the
pregnant mother or the adolescent girls, and it depends upon the physical activity also. Okay, so the person who is actually going to the gym and the young, that cannot have the same person cannot have the same kind of the carbohydrate, lipids, and the proteins who is actually opting for the sedentary lifestyle. So the so many parameters are there. Age also matters. The condition of the body also matters. Not having any clinical cases also matters, and most importantly, physical activity also matters. अगर clinical case है, then also the different kind of the quantities that you are requiring. If the diabetic case you are dealing, so a different kind of the carbs and the lipids you should have. Okay, and if the strenuous exercise कर रहा है, कोई gymming person है, young है, वो कैसा है, अगर sports person, तो all the persons, so the personalized diet for each and every person according to the age, according to the condition of the body, according to the sex, and the body weight also matters. हर किसी चीज Okay. की weight के accordingly. Okay. Yes, ma'am. I got it. Like it is differ from person to person. That is like, yep, I can understand that. But in general, generally, if you take a fit guy, it's a fit guy, and like ladies and आपको gents, if हमारे we 1800 segregate to with, 2000, 1800 to 2000 calories you should have. so if it is an 1800 to 100 to 2000 calories, 2000, what up? 22 तक भी जा सकते हैं कैलोरीज तक, अगर आप Okay, बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर द यंग किड्स. ये मैं एडोलेसेंट के लिए 20-22 साल के लिए बंदे के लिए बोल रही हूँ जो फिजिकली. एक्सक्यूज मी मैम। यस, हाँ जी जी. मैम, मैं व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हूँ, फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, भावना जी प्लीज कर दीजिए. इफ आई एम दी, आप मुझे करिए मैसेज, अगर आपका मैं एडमिन हूँ शायद, तो आई बी गोइंग टू ऐड. ओके, ओके मैम। अदरवाइज भावना जी हैं, वो भी ऐड कर सकती हैं. हाँ मैं प्लीज कर मुझे कर लेना मैम। मैं कर देती हूँ. ओके, ये हाँ आपके पास एक लिंक है, देखिए जी, आद्या शक्ति जी ने भेजा है. यू कैन एक्चुअली ज्वाइन थ्रू दिस लिंक. ओके मैम। मैम आया नहीं अभी मेरे पास। ये मैसेजेस में अभी किसी ने डाला, देखिए मैसेजेस में आद्या शक्ति जी ने डाला. यू कैन चेक ठीक है दिस. मैम, ठीक है मैम, मैं देख लूँगी। थैंक यू. इसमें देखिए, और uh, यू कैन ज्वाइन दिस लिस्ट. uh, yes, ma'am. No, ma'am. हाँ जी, अभी इसी ने पूछा है मुझसे कि कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करनी है. Those calorie calculations would be, you would be learning whenever you would be planning your meal planning and diet charts. And it's a tedious job. It's a tedious job. खूब mind boggling होती है, एक चीज को करना है and एक चीज को नहीं करना है, skipping करनी है. उसमें personal likings, personal dislikings होती हैं. Preparation of the एक्सक्यूज मी मैम, foods मैम also. बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस की बिल्कुल भी वॉइस नहीं सुन पा रही है, तो प्लीज कभी Hello, फीडबैक Miss दीजिए, Anuradha. प्लीज कभी म्यूट कर Kindly दीजिए. mute yourself. Miss Anuradha, please mute yourself. Thank you. Yes, ma'am. Continue. So diet chart, meal planning you would be learning later. वैसे DNHE में meal planning and diet charts नहीं है. If you want to learn, you can learn from me, no props. But इसमें आपको करना तो एंड में डाइट चार्ट्स पे ही काम है. So extra बहुत हेल्प मेहनत करने वाली है, and making the diet chart for any person, 7-day meal planning आपको देनी होती है. It's quite a mind-boggling job. And first you should start learning with the carbs and the different disliking, because आपको उसकी पूरी history देके and disliking likings, उसकी major physical activities and everything you have to learn, and then you can have उसके बाद आप उसका diet charts बनाएंगे. ठीक है, and Okay, ma'am. according to calorie calculations. ये यही एक मेन है. It's not an easy job. आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड बहुत मेहनत वाला काम है ये. ठीक है. नहीं, that's the reason मैं आपसे वो पूछना चाहता था कि like ऐसे हम किसी को कट ऑफ नहीं कर सकते ना कि कैलोरीज एंड लिपिड्स, इट रिक्वायर्स अ सर्टेन वो तो आपको टेक्निकल मैंने टर्म. एक वेग सी नॉलेज दे दी है, वो सब पे अप्लाई नहीं होती है. आपको Yeah, पर्सनलाइज्ड बॉडी वेट, क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शन, इन 4 चीजों के बगैर आप बात नहीं करेंगे. ठीक है, true. इसके And बगैर one, बात नहीं करनी है. एंड आप yes, ma'am. अभी से रियलाइज करना शुरू कीजिए प्लीज. यू हैव टू रियलाइज that it's not a small job for any of the dietitian, any of the nutritionist. It's not a job, because आप लोग किसी की हैबिट्स को चेंज करेंगे. ओके, आपको उसकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द ईटरीज. ओके, एंड उसको कंट्रोल कराना है, क्योंकि आप लोगों का करेंगे और लोग बीच में स्किप कर जाते हैं, एंड देन आपकी
आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज देन दिल स्टार्ट हैविंग रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बिकॉज किसी की हैबिट्स को चेंज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग्स को चेंज करना इट्स अ डिफिकल्ट वन. ओके, सो बिकॉज उसके टेस्ट के साथ प्ले करना, यू हैव टू डील विद देयर प्रिपरेटरी मेथड्स ऑल्सो. फूड कैसे आप प्रिपेयर करते हैं, उनके किस मेथड से प्रिपेयर करते हैं, कौन से ऑयल को करते हैं. देखिए आप सिंपल सी मेरी बात को समझिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं अभी सरसों का ऑयल यूज करती हूँ ना, तो मुझे मैं उसी में भिंडी की सब्जी एंड गोभी की सब्जी, ओकरा ओकरा और कॉलीफ्लावर उसी में बनी हुई अच्छी लगती है. इफ यू से दैट नो दिस इज नॉट गुड फॉर यू, स्टार्ट हैविंग द ऑलिव ऑयल. उसकी एकदम से उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग अगर उसमें होगी ना, वो चेंज करना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. दे वोंट एक्चुअली लाइक हैविंग दीज थिंग्स. उनको डिफिकल्ट हो जाता है उनकी हैबिट्स को चेंज करना. ये मैं बहुत छोटा एग्जांपल, किसी की शुगर को कम कराना इट्स ऑल्सो अ टीडियस जॉब. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको कंप्लीटली फॉलो अप लेने पड़ेंगे, आपको कंप्लीटली मॉनिटर करना पड़ेगा. ओनली द डाइजेशन वुड बी, एंड दिस जॉब इज क्वाइट अ टफ वन. ऐसा नहीं है कि ये easy है. And making and planning, meal planning and the diet chart planning is a tough job. It's a mind boggling. Tough means you have to spend your energy, good amount of the energy एक के लिए. एंड अगर आप इसको नोबल कॉज लेके चलेंगे, एंड देन इट वुड बी गुड फॉर यू, एंड इट्स अ गुड प्रोफेशन, एंड इट्स क्वाइट एन enjoyable profession, I must tell you. Okay, Yes. बिकॉज इसमें चैलेंजेस बहुत हैं. यू हैव टू चैलेंज लेके चलना पड़ता है. आपको किसी को हेल्दी बनाना है, उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके, आपको हैबिट्स चेंज करके, आपको उसको फील गुड करवाना है, उसमें स्टेमिना क्रिएट करना है, उसके क्लिनिकल केसेस, उसकी मेडिसिन को चेंज करवाना. यस, एक आप पूछ रहे हैं, यस आपको हमेशा ऑयल्स एंड चीजें चेंज करनी चाहिए. ऑयल्स को भी चेंज कर, बिकॉज एवरी ऑयल इज हैविंग अ डिफरेंट मेथड, बट लिमिटेड अमाउंट यूज कीजिए. देखिए ऑलिव ऑयल पे हमेशा के लिए डिपेंडेंट होना इट्स नॉट अ गुड आइडिया. ऑलिव ऑयल के अपने बेनिफिट्स हैं, सरसों के ऑयल के अपने बेनिफिट्स हैं, मस्टर्ड ऑयल के, एंड देन देयर आर बेनिफिट्स ऑफ द डालडा घी, इवन देसी घी, इवन बटर के अपने सबके अपने बेनिफिट्स हैं. सो कीप ऑन चेंजिंग. इवन टूथब्रश पेस्ट आप यूज करते हैं ना, कीप ऑन चेंजिंग. ऑयल, हेयर ऑयल, कीप ऑन चेंजिंग. ओके, किसी के लिए भी पूरा हैबिचुअल नहीं होना चाहिए आपको, because everything would be having a different kind of benefits, different kind of ingredients which are mandatory, which are required by your body. Okay. एक्सक्यूज मी मैम. हेलो मैम. मैम मेरा नाम भी व्हाट्सएप में ग्रुप में डालना था. ये एक्चुअली आप ये मैसेजेस देख रही हैं, यहाँ यहाँ पे अभी एक ना ये लिंक है, ठीक है. सच्चिदानंद गुप्ता जी ने एक, पहले आदिया जी ने, एंड मैं भी अभी ये आपको फिर से शेयर कर रही हूँ. ये है, इसके थ्रू अगर आप ज्वाइन कर जाएंगी, ठीक है, तो ठीक है ये मैम. ठीक है, ये एक ओके मैम. इनविटेशन है. इसमें इसके थ्रू आप ज्वाइन कर जाइए, ठीक है. ठीक है. हेलो. जो नंबर्स दिए होते हैं हमें कार्ब्स और प्रोटीन के, हम उनको लेके कैलकुलेशंस करते हैं ना. आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. नैन्सी जी ने पूछा है, कैन यू हाँ रिपीट? मैम, जो आरडीए के अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा आता है पर ईयर कार्ब्स और प्रोटीन का एज के अकॉर्डिंग, तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करते हैं. Still, I'm not getting your question. Can you? Anybody else can explain if they Yes, ma'am. I have heard the question. मैम नैन्सी जी का क्वेश्चन है कि आरडीए पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग बैलेंस डाइट या Yes, किस पे yes, yes, कैलकुलेट करेंगे? yes. RDA recommended dietary allowances हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप हम चलेंगे whenever we are planning diet. Most of the time हमें वही करना है. कोई extremely कोई sorry extraordinary cases होते हैं, then we can actually, but we have to go to the RDA. RDA में बड़ी अच्छी values बताई हुई हैं. They have according to RDA. बट मैम मेरे से कुछ सीनियर डाइटिशियन है जो मुझे गाइड कर रहे हैं. उन्होंने कुछ रूल्स बताए मुझे, कुछ नोट्स करवाए हैं. जैसे मेंस और वुमेन्स पे अलग कैलकुलेशन करना है. RDA is a recommended dietary allowances for every the ingredients of like carbohydrates, lipids, proteins, multivitamins and all. Everything is a recommended dietary allowances. उसके अकॉर्डिंगली आपको करनी होती है. हाँ जी विजय जी, आप कुछ बोल रहे थे, सीनियर डाइटिशियंस.
यस मैम, मैं आपके साथ शेयर करूँगा पर्सनली, मुझे उन्होंने शेयर किया था पिक। आप मैम मुझे मेरे कुछ मैसेज कीजिए। यस मैम, मेरे ठीक कुछ 8-10 क्वेश्चन है, तो मैम पर्सनली क्या हम आप लोग बात शेयर कर सकते कीजिए, हैं? जरूर कीजिए, बिकॉज इवन वेन एवर यू आस्क ना क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई कैन आंसर, बट समटाइम्स पता आप ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, आई ऑल्सो लर्न कुछ ऐसी चीजें जो मुझे भी नहीं पता, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं काफी, चलो बिकॉज आई एम in this हाँ profession हाँ since long, but still हाँ till date I learn, because there are so many condiments, there are so many food systems. It's not in India. If you talk about the South India and then you go out of India, if you go for the South Africa, there are so many condiments, okay, so many food systems, preparation methods. तो न्यूट्रिशन में कोई एंड नहीं है, यस ओके। मैम। सो डिफरेंट, अगर आप किसी चीज को डिफरेंटली प्रिपरेशन भी करते हैं ना तो उसके मायने बदल जाते हैं। अगर आपको हाँ किसी चीज की प्रिपरेशन है, मैं किसी और तरह से प्रिपेयर करती हूँ, किसी और फूड ऑयल में करती हूँ, किसी और तरीके से खाती हूँ, तो उसमें डिफरेंट है। एंड अगर आप उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी चेंज कर देते हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स उसके साथ मिक्स करते हैं, मैं कुछ और करती हूँ, तो उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, उसकी बाय अवेलेबिलिटी डिफरेंट हो जाती है, आप डिफरेंट अमाउंट में खाते हो उसकी बाय अवेलेबिलिटी। सो दीज थिंग्स यू नो डिफरेंट है। तो न्यूट्रिशन इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ फील्ड जो बहुत इजी है, दिस इज क्वाइट अ वास्ट फील्ड। इसको जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, जितना आप स्टडी करोगे, जितना प्रैक्टिस में आओगे, उतना ही आप करोगे। एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न इन दिस, यू कैन अर्न लाइक एनीथिंग, कोई एंडलेस जॉब है ये, मतलब एंडलेस लर्निंग जॉब है। मैम कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स जो डायबिटीज आपने बताया क्या मैम, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज है डायबिटीज को कंट्रोल करके नॉर्मल बनाना, ठीक है। सो फॉर दैट आई हैव एक्चुअली टोल्ड यू कि स्टॉप हैविंग द कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टॉप हैविंग द लिपिड्स, बिकॉज एंड स्टार्ट हैविंग द प्रोटीन्स मोर, सो दैट द प्रोटीन स्पेयरिंग भी ना आए, जो मैंने बताया था, बिकॉज प्रोटीन शुड नॉट बी स्पेयर्ड ना, क्योंकि उनकी अपनी फंक्शंस भी करने हैं उसको। सो आपके जो स्टोर्ड मटेरियल है, शुगर है, वो आपके स्टोर खत्म हो जाएंगे, एंड देन लिपिड से भी आपका वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज अगर आपकी ओवर वेट होती है, एब्डोमिनल एडिपोसिटी होती है, विच इज अ बिगनिंग पॉइंट ऑफ द डायबिटिक, तो अगर आपकी बॉडी में कार्ब्स की और ग्लूकोज का उससे क्या होगा, क्योंकि रेगुलेटेड होता है whenever you eat ना, तो सारा का सारा सब कुछ जो whatever you eat, अगर आप ओवर ईट करते हैं then also it would be converted into the glucose, but अगर if you stop having the carbs and if you stop having the lipids, तो आपकी बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस पे चली जाती है। सो अदर देन कार्ब्स, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, बट वो उतनी ही होगी जितनी बॉडी की रिक्वायर्ड है, जितनी सेल्स में जाके एंटर करेगी। सो तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है ना, वो कंट्रोल्ड रहना शुरू हो जाता है। और डायबिटीज में क्या दिक्कत होती है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ओवर रहेगा। सो अब अगर आप कार्ब्स ले ही नहीं रहे हैं, तो बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस पे है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस से स्टोर्ड वाला या ग्लूकोज उतना ही बनेगा जितना रिक्वायर्ड है। सो तो ओवर अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज शुड नॉट बी ओवर इन द ब्लड, तो ग्लूकोज रहेगा ही नहीं। तो दैट्स अ रिवर्सल ऑफ द डायबिटिक, चाहे जेनेटिक हो, चाहे टाइप 2 हो, टाइप 1 हो, जेनेटिक हो या ना हो, या एनवायरमेंटल हो, या एक्सीडेंटल इंजरी के साथ हो, कोई सी भी हो। तो हमारी डायबिटीज में हमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को कंट्रोल करना है, दैट्स ऑल। मैम मैम डायबिटीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि लाइक इफ इन केस डायबिटिक्स पे पेशेंट्स को जनरली फ्रोजन शोल्डर्स, फ्रोजन जॉइंट्स हो जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं, सो इज देयर एनी पर्टिकुलर फूड डाइट फॉर देम जिसकी वजह से वो उनको हेल्प करे फ्रोजन शोल्डर्स या तो फ्रोजन जॉइंट से रिकवरी के लिए? देखो, आपको ना अगर ये फ्रोजन शोल्डर्स एंड आती है ना, तो स्किपिंग ऑफ द मील्स लाइक लिपिड्स इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि उसकी उसकी डाइट में ना फिर लिपिड्स बिल्कुल ही डाउन जा रहे हैं। उसको अगर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज भी साथ में, क्योंकि ना डायबिटिक में क्या होता है कि आपको ना आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, कॉर्नरी वेस्कुलर डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सो आप स्टैटिन्स पे चले जाते हैं, स्टैटिन्स पे जाके आपके कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड बहुत इतने लोअर हो जाते हैं कि आपकी ग्रीजिंग एंड अदर थिंग्स, लिपिड और ऑयली एंड मॉइस्चर खत्म होना शुरू हो जाता है बॉडी में से नीचे। तो ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। इवन इफ दे हैविंग द स्टैटिन्स एंड ऑल्सो, इन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत है, एंड एक्सरसाइज के बगैर नहीं होगा। And start having little bit good amount of the good oils, antioxidant, olive oil, rice bran oil पे dependent हो जाओ, so that these problems, and along with the exercise, for Okay, proper exercise। so उसके बाद adding lipids and like in their diet, keeping in mind कि remaining food has also a same ratio, तो but उसका they ratio cannot have, पता है ये चीजें देखो ना, अब आप देखो
ये चीजें ना अब बहुत मुश्किल हो जाती हैं जब क्लिनिकल केसेस होते हैं। यू आर स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल केसेस को हैंडल करने का। सो Okay. आप देखिए कि एक तो डायबिटिक है, हमें ग्लूकोज लेवल है, हम कार्बोहाइड्रेट स्किप कर रहे हैं, लेकिन डायबिटीज में ऐसी काफी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और अगर उसको इस तरफ चीजें जा रही हैं तो डॉक्टर वुड स्टार्ट हैविंग दी स्टैटिन्स। स्टैटिन से क्या होता है कि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड द लिपिड लेवल्स बहुत लोअर आ जाते हैं, तो आपकी बॉडी में जहां जहां लिपिड्स रिक्वायर्ड होते हैं वहां से भी लोअर हो जाते हैं। सो फ्रीजिंग एंड ऑल ये सारी चीजें तो आएंगी ही, ठीक है। बट उसमें एक तो आपको फ्रीजिंग है कि एक एक्सरसाइज मूवमेंट आपको रखनी है, एंड स्टैटिन्स आपको टाइम पे लेने हैं और थोड़े लिपिड्स ऐड करने हैं। लेकिन जितने आप लिपिड्स ऐड करेंगे उतनी एक्सरसाइज भी कीजिए। तो फिजिकल एक्टिविटी को तो मैं बिल्कुल स्टॉपिंग एंडोर्स करती ही नहीं हूँ, चाहे वो नॉर्मल केस है चाहे वो क्लिनिकल केस है, ठीक Okay, है। ma'am. या यही चीजें तो उसकी हेलो। क्लिनिकल केसेस हैंडल करने डायबिटिक अलोंग विद द कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, इट्स अ टीडियस जॉब, बिलीव मी। आपको इसीलिए मैं आपको बार बार एंडोर्स कर रही हूँ कि आप ये डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब इज नॉट दैट इजी, क्योंकि आप मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स को नहीं करते हो, आप सिर्फ डाइट से ठीक कर रहे हो, ठीक है। यस मैम। मैम एक और क्वेश्चन था रिलेटेड टू वाटर। आपने लास्ट पॉइंट वाटर के बारे में बात की, तो आई जस्ट यस, वांटेड टू नो बिकॉज वाटर हैज लाइक अ वेरी मेन इम्पैक्ट टू द बॉडी, क्योंकि 75% का बॉडी is made of water. So how we should know like this water, like कौन सा water, ये water is good for the body and this is not, how to, सिंपल क्योंकि हम लोग वाटर को तो H2O, सिंपल वाटर H2O स्टेलाइज्ड, बस मतलब वो चाहे वो आप उससे लीजिए सिंपली प्योरीफायर से। प्योरीफायर का मतलब तो हमारा सिर्फ स्टेलाइज करने से है कि वो इन्फेक्टेड ना हो, डायरिया ना हो अंदर जाके, ठीक है। तो बस यही चीजें हैं, सिंपल। जनरली हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं ना बाय लुकिंग एट जस्ट वाटर, लाइक वी कांट आइडेंटिफाई वेदर इट इज गुड और नॉट, क्योंकि वाटर्स के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं एज व्हाट आई हैव स्टडीड। टीडीएस कुछ लेवल की थोड़ा सा बात कर ब्रीफ। रही हूँ, टीडीएस हाँ लेवल की तो बात कर रही हूँ। हाँ वो तो तो फिर आप आरओ की बात कर रहे हैं, उसमें तो मिनरल कंटेंट भी थोड़े कम हो जाते हैं। टीडीएस लेवल इतना लो नहीं होना चाहिए कि आपके मिनरल लेवल्स ही खत्म हो जाएं, ठीक है। आपने डबल डिस्टिल्ड नॉर्मल वाटर लीजिए, अगर आप उसको बॉयल करते हैं काफी देर तक, उसको बस डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए, सिंपल वाटर डिसइंफेक्टेड, जस्ट, एंड ठीक है। इज इट ट्रू कि लाइक आफ्टर ईटिंग फूड, मतलब कितना पानी डायरेक्ट पी जाने से लाइक चीजें होती हैं कि लाइक आप यू डोंट अब्सॉर्ब द न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली, ये सब तो नॉर्मल बेसिक होती है, बट लाइक कितने हद तक, लाइक हाउ मच एग्जैक्टली इट इज ट्रू कि लाइक इतना कंजप्शन इज ओके, इतना नहीं करना चाहिए? इज देयर एनी देखो मेजरमेंट देखो काइंड ऑफ मैं सॉर्ट ऑफ थिंग? बताती हूँ, little bit water, half a glass water you should have after having a full meal, ठीक है। आफ्टर सम टाइम यू कैन हैव दैट। कई लोग बिल्कुल नहीं लेते हैं, वो भी बहुत बुरी बात है, बिकॉज आपको अपने पीएच के लेवल तो पता ही नहीं है ना स्टमक के, बिकॉज डाइजेशन के लिए पीएच लेवल बहुत जरूरी है। एंजाइम्स भी ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं। हर एंजाइम के लिए जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, दैट एंजाइम इज डिपेंडेंट अपॉन द थ्री कंडीशंस: concentration of the substrate, temperature of the body, and then the pH level of that system, ठीक है। सो एवरी एंजाइम इज वेरी स्पेसिफिक फॉर थ्री थिंग्स। अगर आप पानी नहीं पी रहे हो और बहुत ही एसिडिक लेवल है, एंजाइम की एक्टिविटी ही डीनेचर हो, बिकॉज ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, वो इतनी ड्रास्टिक पीएच पे काम करेगा कि प्रोटीन डीनेचर हो गया तब भी अनडाइजेशन हो जाएगी। टेम्परेचर भी ऑप्टिमम नहीं है बॉडी का, फीवर है, फीवर में डाइजेशन पे फर्क पड़ता है, because your enzymes they start denaturing because they cannot survive at that temperature when you have a fever. Moreover, the concentration of that substance also matters. जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा करते रहोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी पूरी पूरी प्लेट्यू पे आ जाएगी। लेकिन अगर कंसंट्रेशन इज ऑप्टिमम है, देन दे विल स्टार्ट वर्किंग, बट लिमिटेड अमाउंट। अगर आप सब नॉर्मल की बात कर रहे हैं, सो हैव हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर इमीडिएटली आफ्टर हैविंग मील, आफ्टर सम टाइम यू शुड हैव अ लॉट ऑफ वाटर। बट डिपेंड करता है कि अगर आपने मिलेट चपाती खाई है, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू द व्हीट चपाती एंड ऑल। ये मल्टीपल चीजें हैं, इनके सिंगल आंसर्स नहीं है। आई हैव टू लुक फॉर योर चपातीज। अगर एक सिंगल चपाती ली तो कम वाटर से चल जाएगा, लेकिन अगर दो चपातीज लिए यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ वाटर। बट मीट है देन ऑल्सो यू शुड हैव वाटर, ठीक है। बट कैसी सब्जी खाइए, कैसी चीज खाइए, इट्स लाइक इट्स नॉट एन इजी जॉब, ठीक है। आपको सो कम ज्यादा ये तो मतलब खाने के बाद वी कैन हैव वाटर? यू कैन हैव लिटिल बिट ऑफ वाटर। ओके। एंड आइडियल पर्सन के लिए इन अ डे कितना कंजप्शन ऑफ वाटर इज गुड?
देखो अब मेरी बात करेंगे आप, तो मैं तो 3 to 4 liters, कई बार उससे भी ज्यादा हो जाता है. Sometimes I just put on a liquid Like, diets, all juices and all fruits पे चलती हूँ मैं. I don't want to have that wheat and फुल्का नहीं लेती हूँ. I just have a like दाल and सब्जियाँ, salads and all. Okay, so I have lot of water. पानी तो आप जितना पियो उतना अच्छा है. ठीक है, उतने ही टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, क्योंकि पानी, वाटर इज अ न्यूट्रल सिस्टम. उसने ना तो आपको उसका पीएच चेंज करनी है. ठीक है, इट्स जस्ट यू हैव टू गो फॉर loo many times. It's just a one big problem. But 3 to 4 liters you should have. हर बंदे को 3 to 4. 3 तो मिनिमम and है, मैक्सिमम है. उससे ज्यादा कितना भी लीजिए, कोई नुकसान नहीं है उसका. okay, and 3 to 4 liter वाटर की बात हो रही है, and liquid food उसमें एडिशनल है या like included in that? मैंने फूड की बात ही नहीं कही है. फूड की Okay. बात तो कैलोरीज में कैलकुलेट करेंगे. फूड कभी मिले उसके वाटर के साथ नहीं है. फूड कुड बी कैलकुलेटेड एज ए कैलोरीज. कौन सा लिपिड ले रहे हैं, कितना लिपिड ले रहे हैं, क्योंकि 1 gram ऑफ द लिपिड वुड बी गिविंग यू 9 किलो कैलोरीज. Okay, so 3 liters of water and 1 liter of juice a day is okay, but like वो उसमें count नहीं होगा, right? Water and नहीं differ नहीं, कर जाएगा. वाटर में ही काउंट हो जाएगा, क्योंकि जूस में वाटर Okay. कंटेंट बहुत होता है. Okay, and ये एक चीज थी कि chilled water body को harm करता है क्या if we Yes, drink? yes. एक चीज और सुन लो, मैं बहुत खाती हूँ, कई बार मैं नहीं करती हूँ. 2 चीजें जिंदगी में कभी नहीं खानी पीनी चाहिए. एक आइसक्रीम, दूसरी चाय. सिंपल. ये तो आपकी जिंदगी से निकल ही जानी चाहिए. अब मुझसे पूछोगे तो मेरा चाय के बगैर नहीं चल पाता. फिर देन आई स्टार्ट हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ टीज. जैस्मीन है, कैमोमाइल है. बड़ी कोशिश करते हैं, बट हैबिट्स, वो जो पंजाबीज एंड ऑल, वो जो चाय दूध वाली है, उसके बगैर बात बनती नहीं है ना. फिर इसी पे बात अटक जाती है कि बात बनती नहीं है, तो फिर आदतें खराब होती हैं. सो स्टॉप हैविंग. 2 चीजें कभी भी नहीं करनी चाहिए, एक आइसक्रीम एंड दूसरी चाय. Why, ma'am? इसके बहुत लंबे सी रीजंस हैं. दिस शुड बी लाइक एक्सप्लेन्ड एज ए बायोकेमिस्ट्री. ये इतना सिंपल आंसर नहीं होगा. एंड आपका टाइम ऑलरेडी आप हो गया. 2 hours से बोल रही हूँ मैं. It's already 8 to 10. We'll discuss next time. We'll start with the new topics and all. Okay. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, One more question. पढ़ना शुरू कीजिए, प्लीज पढ़ना भी शुरू कीजिए. पढ़ेंगे तो then we'll start writing answers and then I'll answer. Okay. Okay. good Okay. evening, ma'am. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. Next Saturday and Sunday. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank you, ma'am. Have a nice week. Thank you, ma'am. Days, like weekdays. Okay. Okay.